नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय बुद्धे श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. So, with the mercy of Guru, Krishna and all the Vaishnavas, we will be starting now the 10th canto, first chapter. And before we start, we want to glorify the Acharyas, starting from Srila Prabhupada. Srila Prabhupada is so merciful. He has given this Srimad Bhāgavatam. Otherwise, it is impossible for us to relish this Bhāgavatam, and we would not have heard about Bhāgavatam at all. So that was the situation. So Prabhupada has done so much of mercy on us, and especially when he wrote this, first he wrote the Krishna book, which is nothing but a 10th canto fully, and after that he started writing the first canto onwards. So this way we are very fortunate to have this Srimad Bhagavatam commentaries by Srila Prabhupada, and he has quoted so many wonderful references from various acharyas, starting from Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, Sridhara Swami, and so on. Then coming on to the next level, we have his disciples who have been spreading the message of Krishna consciousness so well. In this regard, I would specifically glorify my Guru Maharaj, who has given me this wonderful knowledge, because otherwise I was in the darkest ignorance, as we say, Om Ajnana Timirandasya. So he has opened the eyes with the torch of knowledge, and with his mercy and blessings, we are starting the Srimad Bhagavatam, and under his instruction and guidance, we have been doing this for how many years, and we are reaching the 10th canto this year. So today and tomorrow we will be doing from Chennai online. Then from 23rd onwards, we will be doing from Dubai till 14th. Then again back to online from 15th to 21st, because at that time the Bhagavatam Saptaham will be happening in Dubai. So that will be offline. So devotee will be joining there. So this way the program has been planned with the mercy of Srinaji. Everything will go well. We are starting the Bhagavatam. We request, let me check it, because my Guru Mata बोल रही थी आएगी करके. हरे कृष्णा. सिमरन. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Whether Mani Mataji is there somewhere, I can't see that. Only 13 are there. Yes, Prabhu. No Mani. Only 13. She has not joined. Okay, no problem. We'll start off with the. Again, I want to specifically thank my Shiksha Guru, His Grace Mahamani Krishna Prabhu, who inculcated or who inspired us in doing the Srimad Bhagavatam. He has been doing it for so many years, and we have been continuing for so many years. So we thank the entire family, especially Mani Prabhu has been keep on insisting us to read the Bhagavatam on a daily basis, and Guru Mata, Her Grace Paripurna Radha Devi Dasa Mataji, she has been also guiding all these years, and his family, Shivalla Prabhu, Nanda Kumar Prabhu, and the whole family have been
always giving their wonderful association, and we are able to continue, and their support is always with us. So we are able to do all this. And above all the devotees who are assembled here, that's very important, the Vaishnavas. So this is also very important. So we thank all of you to join this wonderful session. So with this, we'll start the Bhagavatam. Hare Krishna. I have given a brief description or the introduction, whatever you call it. So now we'll move on to the Bhagavatam session directly. Before that, we always chant the Bhagavata Mahatmya Shlokas, which many of you may know that. We'll start up with that. Simran? Yes, Prabhu. Can I give you co-host? You can show that Jnana Shlokas and all? Sure. Prabhu, I'll join from my laptop. Then you can make my name the co-host, Prabhu. Okay. Yes, just 1 minute, Prabhu. No problem. So before that, I'll start then. Samsara sagare magnam dinam mam karunanide karmagraha grihitangam mamuddhar bhavanavad Srimad Bhāgavata hyoyam pratyakshaha krishnayevahi svikrutosi maya natha mutyartam bhavasagaret manorato madiyoyam sarvata safalasvaya nirvignenaiva kartavyo dashoham tava keshava Kasturi tilakam lalatapatle vakshastale kaustubam nasagre varamotikam kartale venu kare kanganam sarvangi harichandanam sulalitam kante cha muktavali gopastri paraveshtito vijayate gopala chudamani asti sastaruni karagra vigalat kalpaprasunaluttam vastut prastut vonunadalahari Nirvan Nirvyakulam Srasta Srasta Nibadha Nivimelasate Gopi Sahasrapratam Astanyastanatapa Vargam Akhilodaram Kishora Krutihi Krishnam Narayanam Vande Krishnam Vande Vrajapriyam Krishnam Dvaipayanam Vande Krishnam Vande Pratasutam Sachidananda Rupaya Vishwatpatyati Hetave Tapatraya Vinashaya Sri Krishnaya Vayam Namaha Srimad Bhagavatam Nama Puranam Loka Vishrutam Shrunya Shraddhaya Yukto Mama Santosha Karanam Shlokardham Shlokapadam Va Nityam Bhagavatodbhavam Patete Shrunya Adhyastu Gosahasra Phalam Labhet Mamosuveshu Sarveshu Srimad Bhagavatam Param Shunvantiye Nara Bhaktya Mama Priteya Cha Subrita Vastra Alankaranaihi Pushpai Dhupadipa Paharakaihi Vahi Kritohi Aham Taischa Sastriya Satpatiriyata Shukarupa Prabodhagnya Sarvashastra Visharada Etatkata Prakashena Medagyanam Vinashaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna Janmadhyasya Yato Anvaya. I request all the devotees who are here, you can see the screen and chant along with me. Hare Krishna Hare Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadhyasya Yato Anvayat Itaratascha Arteshu Abhigyaswarat Tene Brahma Hruda Yadi Kavaye Muyanti Yasurayaha Tejo Vari Mridam Yata Vinimayo Yatra Trisargo Amursha Dhamna Svena Sada Nirastakohakam Satyam Param Dhimahi. Next shloka. I request Ratna Bhushan Prabhu. Can you read the shloka, please? Hare Krishna Prabhu. Yeah. Dharma projita kaitavo atra paramo nirmal saranam sadham vedyam vastavam atra vastu shivatam tapatrayonmulanam Srimad Bhāgavate Mahamuni kimva pare ishvaraha sadyo hridya varudate atra kritibihi shushrushubi tatshanat. Hare Krishna. Hare Krishna. Next shloka.
Can I request Danishta Mataji? Hare Krishna Prabhu. Nigamagal kalpataror galitam phalam shukamukhada amrita dravya samyutam pibata bhagavatam rasamalayam muhuraho rasika bhuvi bhavukaha. Hare Krishna. Next shloka, Shiv Thakur Mataji. Hare Krishna, Vidanda Pranam. Hare Krishna. Sutuvacha yam pravajantamanopetamapeta-krityam dvapayano virahakatar ajuhava putreti tanmaya taya tarvo avinedu stam sarvabhuta hridayam munimanatosmi. Thank you. Okay. Next shloka. Can I request Kamalamukhi Mataji? Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Yasvanubhavamakila srutisaramakam adhyatmadipam atitishatam tamondam samsarinam karunaya purana guhyam tam vyasasunu upayami guru munina. Thank you. Next shloka, Ramya Selvaraj Mataji. Simran, next shloka, 1, 2, 4. Ramya Selvaraj Mataji. It's loading, Prabhu. Hare Krishna. Fourth Hare Krishna. one. Yeah, she will show it. It takes time. What happened? I got it. Yeah. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudirayet. Hare Krishna. Nashta prayeshu babadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati nashtiki shrunvatam sakata krishna punya shravana kirtanaha hridi antasto hi abhadrani vidunodi suhursatam. Hare Krishna. So now, Simran, can you show the 10th canto? Yeah, summary. Okay. I request, I'll call the names of the devotees. Please, all of you read it one after another as I call. Okay. To start with, Chitra Mataji, can you start? Hare Krishna. She is not there. Okay. Dr. Lavina Patel Mataji, can you start? The Advent of Lord Krishna introduction. The summary of the first chapter is as follows. The chapter describes how Kamsa, frightened by hearing an omen about his being killed by 8th son of Devaki, killed Devaki's son one after another. When Sukdev Goswami finished describing the dynasty of Yadu, as well as the dynasties of moon god and sun god, Maharaja Parikshit requested him to describe Lord Krishna, who appeared with Baldeva in Yadu dynasty, and how Krishna performed his activities within this world. Krishna is transcendental, the king said, and therefore to understand his activity is the occupation of a liberated person. Hearing of Krishna Leela is the boat by which to achieve the ultimate goal of life. Except for an animal killer or one who is following a policy of suicide, every intelligent person must strive to understand Krishna and his activities. Krishna was the only worshipable deity for the Pandavas. When Maharaja Parikshit was in the womb of his mother, Uttara, Krishna saved him from the attack of Brahmastra. Now Maharaja Parikshit asked Sukadeva Goswami how his lordship Baldeva, the son of Rohini, could have appeared in the womb of Devaki. Why did Krishna transfer himself from Mathura to Vrindavana? King Parikshit asked, and how did he live there with his family members? What did Krishna do in Mathura and Vrindavan? And why did he kill his maternal uncle,
maternal uncle Kamsa. For how many years did Krishna reside in Dwarka? And how many queens did he have? Maharaja Parikshit asked Sukdev Goswami all these questions. He also requested Sukdev Goswami to describe other activities of Krishna about which he could not inquire. 1 minute. Mataji, I will give another devotee to chance. Okay. Chitra Mataji, are you there? Okay. She is not answering. Let's move on to Lalita Mataji. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. When Sukadeva Goswami began to speak about Krishna consciousness, Maharaj Parikshit forgot the fatigue brought about by his fasting. Enthusiastic to describe Krishna, Sukadeva Goswami said, like the waters of the Ganges, descriptions of the activities of Krishna can purify the entire universe. The speaker, the inquirer, and the audience all become purified. Once, when the entire world was overburdened by the increasing military power of demons in the form of kings, Mother Earth assumed the shape of a cow and approached Lord Brahma for relief. Sympathetic to Mother Earth's lamentation, Brahma, accompanied by Lord Shiva and other demigods, took the cow-shaped Mother Earth to the shore of the Milk Ocean, where he offered prayers to please Lord Vishnu, who lay there on an island in transcendental ecstasy. Brahma thereafter understood the advice of Mahavishnu, who informed him that he would appear on the surface of the earth to mitigate the burden created by the demons. The demigods, along with their wives should appear there as associates of Lord Krishna in the family of Yadu to increase the sons and grandsons in the dynasty. By the will of Lord Krishna, Anantadeva would appear first as Balrama. In Krishna's potency, Yogamaya would also appear. Brahma informed Mother Earth about all this, and then he returned to his own abode. Hare Krishna. One minute. So now we call Lata Aswani Mataji. Hare Krishna. Simran, can you show Hindi also if it's possible? Prabhu, I'll search if I can get that Hindi script, but till then maybe someone can read in English. Okay, I'll do that. No problem. Ramesh Adnani Prabhu. Ramesh Adnani Prabhu, can you read? Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। पढ़िए माताजी। प्रभु जी पढ़ो। रमेश अदनानी प्रभु, 1 minute. Ramesh Adnani Prabhu, 1 minute. Lata Mataji is there. Driven by Ramesh Adnani Prabhu, brother, 1 minute. and an envious voice addressed Kamsa. Continue. Prabhu, continue. Hare Krishna. Your net is not there, Prabhu. प्रभु लता जी मैं माताजी, पढ़ना स्टार्ट करूं? आप पढ़िए। जब वसुदेव देवकी से विवाह करके देवकी के भाई कंस द्वारा हाके जा रहे रथ पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे, तब कंस को संबोधित करके आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यह अपशकुन सुनकर कंस देवकी को तत्क्षण मार डालने के लिए उद्यत हुआ, किंतु वसुदेव ने व्यवहार कुशलता से उसे यह कहकर समझाया कि उसे अपनी छोटी बहन को विशेषतः विवाह के समय पर नहीं मारना चाहिए। हर देहधारी की मृत्यु अवश्य होगी। हर जीव एक शरीर में कुछ काल तक जीवित रहता है और तब वह दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है, किंतु दुर्भाग्यवश वह शरीर को आत्मा मान बैठता है। यदि इस भ्रांत धारणा से कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को मारना चाहता है तो उसकी नारकीय के दौर पर निंदा होती है। चूंकि कंस को वसुदेव के उपदेशों से संतोष नहीं हुआ, इसलिए वसुदेव ने एक योजना बनाई। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि वे देवकी की सारी संतानों को लाकर कंस को सौंप दिया करेंगे, जिन्हें वह मार सके। तो फिर देवकी को मारने से क्या लाभ?
कंस को यह प्रस्ताव भा गया। समय आने पर जब देवकी को बच्चा उत्पन्न हुआ तो वसुदेव उस नवजात शिशु को लेकर कंस के पास पहुंचे, जो वसुदेव को की वदान्यता देखकर चकित रह गया। जब वसुदेव ने शिशु कंस को दे दिया तो कुछ बुद्धि दिखाते हुए कंस ने कहा कि चूंकि उसका वध 8वीं संतान के द्वारा होना है तो फिर पहली संतान को मारने से क्या लाभ। यद्यपि वसुदेव को कंस के कहने पर विश्वास नहीं हो रहा था, किंतु कंस ने वसुदेव से बालक को वापस ले जाने के लिए कहा। परंतु बाद में जब श्री नारद मुनि कंस के पास पहुंचे, हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए माता जी। नारद मुनि पहुंच गया ना, इसलिए हंस रहा था। कंस के पास पहुंचे और उसे यह रहस्य बताया कि देवतागण यदु तथा वृषवंशों में उत्पन्न होकर उसे मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो कंस ने इन वंशों में जन्म लेने वाले समस्त बालकों को मार डालने का निश्चय किया और उसने भी यह तय किया कि देवकी के गर्भ में उत्पन्न सारे बालकों को मार डाला जाए। अतएव उसने वसुदेव तथा देवकी दोनों ही को बंदी बना लिया और एक एक करके उनके 6 पुत्रों को मारता रहा। श्री नारद मुनि ने कंस को यह भी सूचित किया कि कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसका वध श्री विष्णु ने किया था। फलस्वरूप कंस सारे यदुवंशियों का महान शत्रु बन गया है। यहाँ तक कि उसने अपने पिता, हरे कृष्ण, वो पैराग्राफ पूर्ति करो माता जी। हाँ, यहाँ तक कि उसने अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बना लिया, क्योंकि वह अकेले राज्य भोग करना चाहता था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अभी रमेश अदनानी प्रभु आप शुरू कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, शुरू कीजिए। Krishna has threefold pastime in Brija Leela, Mathura Leela, Dwarka Leela, as already mentioned in the 10th canto of Srimad Bhāgavata. There are 90 chapters which describe all these Leelas. The first 4 chapters describe Brahma's for the relief of the earth's burden, and they also describe the appearance of the Srimati of God, Yamuna, and how Akura operates. Chapters 41 through 51. 11 chapters tell Krishna's pastime in Mathura, and chapters 52 through प्रभु आपका आवाज कट हो रहा है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, आपका वाईफाई क्या प्रॉब्लम है? Hare Krishna Prabhu, can I read? Yeah, start. Okay, Prabhu. Tell of Krishna's pastime in Madhura, and chapters 52 through 90, 39 chapter. One second, it's not visible. One second. 39 chapters relate Krishna's pastimes in Dwaraka. Chapters 29 through 33 describe Krishna's dancing with the gopis, known as the Rasa Leela. Therefore, these 5 chapters are known as Rasa Panchadhyaya. The 47th chapter of the 10th canto is a description known as the Brahma Gita. Brahma Gita. Yes. Text 1. Can I read, Prabhu? Yeah, wait. Okay, we are coming to the sloka now. Okay. Actually, in the book what I have, no, Granth, the summary of the 10th canto is fully there. Okay, that we'll do it day after tomorrow. Since we wanted to start the 10th canto, we have started it. We'll start with the first sloka. Because now we have read only the chapter summary, but the canto summary itself is there, that we'll do it day after tomorrow. Okay, moving on to today's sloka, first sloka.
Once again, Om Ajnanatinamrasya Jnananjalakalapya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukam karoti vachalam pangam langeligram kripatamaham vande Shri Gurum Dinatarinam Paramanandamadam Shri Chaitanya Ishwaram Namah Vishwapadaya Krishna Preta Gaurakata Damadaya Nagara Gramata. Hare Krishna. I want to just briefly tell, yesterday my Guru Maharaj came to Chennai from Kolkata. We went to have his darshan in the airport. At that time we had so many devotees around and Shivala Prabhu was also there. At that time we were planning to get the blessings of my Guru Maharaj, His Holiness Jayaprakash Swami Maharaj, before starting the 10th canto. Generally every year we used to take his blessings either through mail or call, something like that. This year we were very fortunate we could have his darshan and we could get his blessings in presence. So as I was explaining, this is what we are planning to do. We need a blessings Guru Maharaj like that. Immediately when I was about to touch his lotus feet, immediately from his neck there are so many jasmine garlands. He put one on my shoulder and he made me to look at him directly because when I was bending. So this way I got the blessings and he asked me to continue the services for Guru Krishna Gauranga. Then behind me, Geeta was also there. She also got a garland from him in her hands. So this is the way we both of us got the blessing and we take it as a great fortune and we are continuing the service for our Guru Maharaj Prabhupada and the entire ISKCON mission. Hare Krishna. So we'll start with the very first sloka. Bhagavatam, as we know, it is a nectarian ocean and Rasamalayam, we always say that. As we say that, everywhere the Bhagavatam is nectarian, right? Each and every portion of it. And Prabhupada in general, उन्होंने क्या बता रहा है हमेशा भागवत जो भी पढ़ने के लिए इच्छुक है वो व्यक्ति क्या करना पड़ेगा हमेशा पहला स्कंद से क्रम से 9वें स्कंद तक पढ़ना चाहिए क्योंकि 10वें स्कंद पहुंचना इतना आसान नहीं है तब तक ये पहला स्कंद से 9वें स्कंद तक उन्होंने जैसे क्रम से पढ़ता है भगवान के बारे में भगवान का लीला के बारे में वो पूरी तरफ से समझ सकते हैं क्योंकि भगवान का विषय के बारे में समझना इतना आसान नहीं है राइट इसलिए प्रभुपाद ये बता रहा है अगर जो व्यक्ति ग्रंथ में और शास्त्र में पूरा उनको सीखने के लिए इच्छा है उन्होंने क्या करना पड़ेगा बैचलर डिग्री बोलते हैं प्रभुपाद भगवद गीता को और श्रीमद् भागवतम को उन्होंने कहते हैं मास्टर्स डिग्री और इसके अंदर अभी 10वें स्कंद के बारे में और भी उन्होंने विशेष बता रहा है क्योंकि 10वां स्कंद तो इतना रहस्य है गुह्य है इसलिए प्रोफेशनल रीडर्स बोलते हैं ना प्रभुपाद कोई सप्ताह करने वाला है क्रम से नहीं करेगा कोई अपना मनमानी से करने वाला है वो लोग ज्यादा क्या करेगा वो 7 दिन में पूरा 10वें स्कंद के बारे में बहुत कुछ बताएगा उनको ठीक से उसका बारे में ज्ञान नहीं होगा इसे ही प्रभुपाद बता रहे हैं ऐसी व्यक्ति से कभी भी नहीं सुनना चाहिए क्योंकि जिन्होंने जो प्रचार कर रहे हैं जिन्होंने भागवत पाठ कर रहे हैं वो संप्रदाय में होना चाहिए इसलिए अगर संप्रदाय में नहीं है तो उनसे सुनना ठीक नहीं है प्रभुपाद बता रहे हैं तो यहाँ आजकल हम भगवत कृपा से ये 10वां स्कंद शुरू कर रहे हैं इसलिए भगवान से हम लोग प्रार्थना करेंगे हमको पूरा अंदर बाहर सब कुछ एकदम शुद्धिकरण करके ये 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे इसके लिए हमारा गुरुदेव और प्रभुपाद का कृपा मांग रहे अभी पहला स्कंद में 10वां स्कंद में पहला अध्याय में पहला श्लोक पढ़ेंगे हरे कृष्णा Simran, can you show that on the screen? You are going to show Hindi. You have to show both then. Is it possible for you? Okay, good. Okay. Yes, Prabhu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Rajo Vacha Katito Vamsha Vistaro Bhavata Soma Suryayo Rajnam Kobhaya वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम हरे कृष्णा ये शब्द जो उपयोग किया है परम अद्भुतम भगवान का बारे में कभी भी देखिए जितना भी आचार्य विस्तार से समझाता है
हर वक्त उन्होंने क्या शब्द उपयोग कर रहे हैं? अद्भुतम। क्योंकि भगवान का लीला तो हमेशा आनंद ही आनंद है। उन्होंने जो भी लीलाएं किया है सब कुछ तो आनंदमय है, और उसमें तो हमको आश्चर्यचकित सुनना पड़ता है, क्योंकि भगवान जो भी लीला करता है हमेशा ऐसे होता है। इसलिए भागवत में बताता, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। उन्होंने लीला जो भी करता है अमानुष्य। इसलिए ऐसी भक्त लोगों को जितना भी वो कथा सुनते रहते हैं आनंद बढ़ते रहते हैं। इसके अंदर इतना अद्भुत लीला किया है, जो व्यक्ति इतना दुख में है ये भौतिक जगत में, उनको हमेशा क्या होता है? आनंद प्राप्त होता है, दुख तो विनाश हो जाता है। इसलिए यहाँ क्या लिखता है? चरितम परम अद्भुतम। क्योंकि ये हम लोग अध्याय का समरी में देखा था, राजा परीक्षित ने विस्तार से सुखदेव गोस्वामी से ये स्कंद को बताने के लिए, क्योंकि भगवान क्यों अवतरित किया है, उन्होंने क्या उद्देश्य के साथ आया है, उन्होंने उनका मामा कंस को क्यों मार डाला है, बहुत कुछ उन्होंने सवाल पूछता है। क्योंकि यहाँ देखिए, जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, उनको भागवत में ज्यादा रुचि होना चाहिए। हमारा परीक्षित महाराज तो ऐसी प्रारंभ में, मतलब गर्भकाल में भगवान को देख लिया है, इसलिए उनको भगवत कथा हमेशा आनंद है। इसलिए उन्होंने बता रहे, जितना बोलते रहेंगे मैं आनंद में सुनते रहूंगा। उन्होंने आगे ये भी बताता है, जैसी ये सुनने में मेरे को इच्छुक बढ़ते रहते, कम नहीं होता। यही है भगवान का लीला का और भगवान का गुण का महत्व। ठीक है, अभी शब्दार्थ पढ़ने के लिए मैं बुलाता हूँ। चित्रा माता जी है, आप पढ़ सकते तो पढ़िए। हरे कृष्णा। ठीक है, नहीं आ रही है। ठीक है, अभी जिनको चांस नहीं मिला, मिली माता जी पढ़िए, शब्दार्थ पढ़िए माँ। हरे कृष्णा, मिली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माँ, पढ़िए। ओके, शब्दार्थ। जय श्रील प्रभुपाद। श्री राजा उवाच, King Parikshit said, Katitaha has already been described. Vamsha Vistaraha, a broad description of dynasties. Bhāgavata, by your lordship. Soma Surya Yaho, of the moon god and the sun god. Rajanam, of the kings. Cha, and Ubhaya, both. Vamshyanam, of the members of the dynasties. Charitam, the character. Parama, exalted. Adbhutam, and wonderful. Hare Krishna. Hare Krishna. Translation, can I request Natasha Gulati Mataji? Hare Krishna Prabhuji. Dandavat Pranam. Hare Krishna. Translation by Jai Srila Prabhupada. King Parikshit said, My dear Lord, you have elaborately described the dynasties of both the moon god and the sun god with the exalted and wonderful character of their kings. Hare Krishna. Hare Krishna. Purport, can I request Devi Mataji? Hare Krishna. Hare Krishna. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. At the end of the 9th canto, 24th chapter, Sukadeva Goswami summarized the activities of Krishna. He spoke of how Krishna had personally appeared to reduce the burden on the earth, how he had manifested his pastimes as a householder, and how soon after his birth he had transferred himself to his Vrajabhumi Leela. Parikshit Maharaj, being naturally a devotee of Krishna, wanted to hear more about Lord Krishna. Therefore, to encourage Sukadeva Goswami to continue speaking about Krishna and give further details, he thanked Sukadeva Goswami for having described the activities of Krishna in brief. Sukadeva Goswami had said, 1 minute. Jato gataha putirgrahat Brajam yedi tartho hatva ripun suta shatani
कृतो उदारः उत्पाद्य तेषु पुरुषः क्रतुभिः समीचे आत्मानम् आत्म निगमं प्रतयान् जनेषु यस्मत्. The Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, known as Leela Purushottama, appeared as the son of Vasudeva, but immediately left his father's home and went to Vrindavana to expand his loving relationship with his confidential devotees. In Vrindavana, the Lord killed many demons, and afterward he returned to Dwaraka, where according to Vedic principles, he married many wives who were the best of women, begot through them hundreds of sons, and performed sacrifices for his own worship to establish the principles of householder life. Hare Krishna. 1 minute. So let me explain further, we can read. So, Simran, can you go up? I will explain, then we can go to the further purpose. Okay. So, यहाँ देख सकते हैं राजा परीक्षित ने कैसे उन्होंने प्रार्थना कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से. हाँ, माय डियर लॉर्ड, आपने इतना विस्तार से समझा दिया जितना भी यहाँ डायनास्टी, मतलब जो भी डायनास्टी था, और इसमें उन्होंने चंद्रमा का जो वंश में सब कुछ बता दिया और सूर्य देव का भी बता दिया, क्योंकि इसमें हर एक तो बहुत आनंद है. हाँ, उन्होंने बता रहे विस्तार से, आपने बताया जितना भी राजा थे हर एक तो राज ऋषि थे. राइट. अभी तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे एट द एंड ऑफ द 9th कैंटो 24th चैप्टर, मतलब सुखदेव गोस्वामी पूरी तरफ से भगवान का लीला के बारे में समझाने वाला है. राइट. समराइज मतलब संक्षिप्त रूप में बता दिया. He spoke of how Krishna had personally appeared to reduce the burden. भगवान क्यों अवतरित किया है? भूमि को भार को कम करने के लिए. क्या हुआ? क्योंकि भूमि में इतना अयोग्य, मतलब असुरों ने बहुत बढ़ गया और भूमि का वजन बढ़ते रहता है. भूमि माता तो सहन करना मुश्किल हो गया, जैसे उन्होंने बहुत सहन करती है और भी बढ़ते रहते हैं. इसलिए उन्होंने प्रार्थना कर रही है और इसलिए भगवान अवतरित करके उनका भार को कम करने के लिए लीलाएं करना शुरू किया. यहाँ इसमें ब्रजभूमि लीला, इसके बारे में विस्तार से भी बता सकते हैं. राइट. क्योंकि ब्रजभूमि लीला बोलेगा तो भगवान जब ही वसुदेव ने मथुरा से लेकर आया वृंदावन में, तब से जो लीला होता है उनको कहते हैं ब्रज लीला, बोलते ब्रजभूमि लीला बोलते. इसलिए हाँ, परीक्षित महाराज भगवान का शुद्ध भक्त है, मतलब स्वभाव उनका ऐसी है. क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे अपना माँ उत्तरा का गर्भ में थे, तभी से उन्होंने भगवान का बारे में हमेशा स्मरण करते थे, भक्ति में रहते थे, कृष्ण भक्त थे. इसलिए उन्होंने विस्तार से सुखदेव गोस्वामी को आगे बताने के लिए बोल रहे. राइट. ऐसी ये श्लोक यहाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे. इसमें क्या बता रहे? लीला पुरुषोत्तम बोलते भगवान को, क्योंकि भगवान का नाम है पुरुषोत्तम. क्यों? पुरुष तो बहुत है, मगर उसमें से उत्तम पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण. इसलिए यहाँ पुरुषोत्तम बताता है. उन्होंने जो भी लीलाएं किया है उसको कहता है लीला पुरुषोत्तम. वसुदेव को पुत्र बनकर आया. हाँ, उन्होंने वृंदावन में अनेक लीलाएं किया है. जितना भी उन्होंने लीलाएं किया है, हर एक लीला तो अपना रहस्य भक्ति के साथ होना. यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग बोलना नहीं चाहिए. क्या लिखा है? कॉन्फिडेंशियल डिवोट, मतलब जितना भी महान भक्त थे भगवान का लीला भाग लेने के लिए, हर एक तो भगवान के साथ हमेशा अपना धाम में रहने वाले. आप लोगों को आगे भी देख सकते हैं, जैसे ही भगवान क्या बताएगा ऐसे ही देवता को बताएगा. हम अवतरित करेगा, तब तक देवता लोग आप वहां जाके पहुंच जाओ, फिर हम लोग शुरू करेंगे करके बताएंगे. राइट. वो आगे हम लोग को श्लोक में आ जाता है, वो देख सकते हैं. यहाँ उन्होंने जितना भी लीलाएं किया है, उसके बाद वहां से उन्होंने भगवान क्या कर रहे हैं, अपना मामा कंस और उनके साथ जितना भी दोस्त थे, पूरा असुर लोग सबको वध करके फिर उन्होंने आगे क्या कर रहे हैं,
द्वारका जा रहे हैं। द्वारका में अलग नगरी निर्माण करके वहां भगवान पहुंच रहे, वहां अनेक पत्नियों के साथ उन्होंने गृहस्थाश्रम कर रहे हैं। वही श्लोक इसमें बता रहा है, हाँ, हाउस होल्डर लाइफ गृहस्थाश्रम, राइट। थोड़ा ऊपर करिए माँ। हरे कृष्णा सिमरन, हाँ, ओके। सो दिस आई रिक्वेस्ट टू Vijay. Vijay, can you read that, please? Vijay? Vijay is there? Not there. Okay, Sarita Kapoor Mataji, आप पढ़िए। Sarita Kapoor Mataji. Hare Krishna. Okay. Vidya Mataji, can you start, please? Yes, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. The Yadu dynasty belonged to the family descending from Soma, the moon god. Although the planetary systems are so arranged that the sun comes first before the moon, Parikshit Maharaj gave more respect to the dynasty of the moon god, the Soma Vamsha, because in the Yadu dynasty, Yadava dynasty, descending from the moon, Krishna had appeared. There are two different Kshatriya families of the royal order, one descending from the king of the moon planet and the other descending from the king of the sun. When the Supreme Personality of Godhead appears, he generally appears in a Kshatriya family because he comes to establish religious principles and the life of righteousness. According to the Vedic system, the Kshatriya family is the protector of the human race. When the Supreme Personality of Godhead appeared as Lord Ramachandra, he appeared in the Shurya Vamsha, the family descending from the sun god. And when he appeared as Lord Krishna, he did so in the Yadu dynasty or Yadu Vamsha, whose descendant was from the moon god. In the 9th canto, 24th chapter of Srimad Bhāgavatam, there is a long list of the kings of the Yadu Vamsha. All the kings in both the Soma Vamsha and Surya Vamsha was great and powerful, and Maharaja Parikshit praised them very highly. Rajnyam Chobhya Vamshayanam Charitam Paramadbhutam. Nonetheless, he wanted to hear more about the Soma Vamsha because that was a dynasty in which Krishna had appeared. The Supreme, yeah, thank you. हरे कृष्ण। यहाँ हम लोग थोड़ा देखिए, अगला पैराग्राफ जाएंगे। ओके, सिमरन कैन यू शो दैट प्रीवियस? ओके, यहाँ यदु डायनास्टी में, यदु वंश में बहुत अनेक राजा थे, राइट। मगर ये सब तो कौन सा वंश का है? असली बोलेगा तो चंद्रमा वंश का है। इसलिए यहाँ लिखा है they belong to the moon god or Soma. That's why it is written there Soma. Although the planetary system is so arranged, the sun comes first and before the moon, Parikshit Maharaj gave more respect to the dynasty of moon god, the Soma Vansha, because Yadu dynasty descending from the moon, Krishna appeared. क्योंकि अभी देखिए, एक दिन में प्रातः काल में पहला आने वाला है सूर्य वंश और सूर्यदेव, उसके बाद चंद्रमा। मगर यहाँ उनको रुचि ज्यादा था परीक्षित महाराज को सोमवंश के बारे में, क्योंकि वहां भगवान श्री कृष्ण ने अवतरित किया, इसलिए उन्होंने विस्तार से वहां शुरू कर रहे। जितना भी हम लोग सुनते थे इसमें उन्होंने बता रहे क्षत्रिय फैमिली में भगवान श्री कृष्ण ने अवतरित किया है, ये याद रखना। क्योंकि कोई बोलेगा नंद बाबा तो व्यापारी है, ऐसा नहीं है, वो तो राजा है, क्षत्रिय वंश में है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण वहां क्षत्रिय वंश में उन्होंने अवतरित किया है। क्योंकि भगवान कौन सा उद्देश्य आ रहा है? धर्म को स्थापन करने के लिए। धर्म को स्थापन करने के लिए चारों वर्गों में सिर्फ क्षत्रिय वंश को शक्ति होता है, जैसे ब्राह्मण को नहीं होता है, व्यापारी को नहीं होता है और शूद्र को नहीं होता है। इसलिए यहाँ धर्म स्थापना, भगवान क्या कहते हैं? धर्म संस्थापनाय, राइट। इसलिए धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान यहाँ क्षत्रिय वंश में अवतरित किया है। वो भी जिन्होंने किया है, इतना एकदम श्रेष्ठ कुल है, वसुदेव और यशोदा और नंद बाबा। क्योंकि यहाँ अकॉर्डिंग टू द शास्त्रिक वंश इसमें लिखा है ना, सूर्य वंश,
The Supreme Personality of Godhead appeared in Lord Ramachandra. और यहाँ भगवान रामचंद्र जी के बारे में प्रभुपाद यहाँ बताता है, भगवान रामचंद्र जी सूर्यवंश में अवतरित किया है। उन्होंने सूर्यवंश में अवतरित करके उन्होंने क्या किया, वहां भी लीला किया है, वहां भी उन्होंने क्या किया, धर्म को स्थापन किया है। कैसे? रावण को वध करके वापस उन्होंने धर्म को स्थापन किया। इसलिए भगवान हर वक्त जैसी लीला कर रहे हैं, हमेशा उनका उद्देश्य यही है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहम्। तो यहाँ रामचंद्र जी अवतरित किया है, उन्होंने अनेक असुरों को भी उन्होंने भी वध किया है। राइट, आगे देखिएगा तो यदुवंश का बारे में और सूर्यवंश का बारे में विस्तार से सुखदेव गोस्वामी ने 9वें स्कंद में बता दिया। उसमें जितना भी राजा आते थे, हर एक तो एकदम प्रसिद्ध है। हर एक के बारे में परीक्षित महाराज प्रशंसा कर रहे हैं। इसका मतलब परीक्षित महाराज एकदम श्रेष्ठ वैष्णव है। दूसरों को हम लोग प्रशंसा करने के लिए हमेशा इच्छुक रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ उन्होंने कैसे बता रहे परीक्षित महाराज, राजनाम चोभ्य वंशायानम चरितम परमाद्भुतम। राइट, इसका अंदर उन्होंने क्यों इतना विस्तार से बताता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित किया है, इसलिए उन्होंने बताया। हरे कृष्णा। आगे पढ़ने के लिए मैं बुलाता हूँ सुमति माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विजय रत्नम। Not there. Okay, Vanisha Mataji, can you read? Vanisha Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी मैं काम पर हूँ अभी, मैं इसका सुन रही हूँ। Okay, सुन रहे हो। Okay, very good. Okay, can I request Radha Madhavi Mataji, Hare Krishna? हरे कृष्ण। Yeah, पढ़िए। हरे कृष्णा, राधा माधवी माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। I think her voice. Yes, माताजी पढ़िए। The Supreme Abode, वहां से। हरे कृष्णा। हाँ, सुन सकते हो, पढ़िए। Something wrong. Okay. Can I request Venugopal Prabhu? Can you do that? Venugopal, office. Okay, Kariji Mataji, can you read that? Sorry, Prabhuji, after some time. Okay. Kariji Mataji, can you? Prabhuji, should I read? Okay, you do it. Because I'm learning Brahma Samhita, so I'm excited to read this. Okay. Do it. Hari Bol. The supreme abode of the personality of Godhead Krishna is described in Brahma Samhita as the abode of Chintamani. Chintamani prakara sadma sukalpa vriksha laksha vriteshu surabhira bhipana yantam. The Vrindavan Dham on this earth is a replica of the same abode. As stated in Bhagavad Gita 8.20, in the spiritual sky there is another eternal nature transcendental to manifested and unmanifested matter. The manifested world can be seen in the form of many stars and planets, such as the sun and moon, but beyond this is the unmanifested, which is imperceptible to those who are embodied. And beyond this unmanifested matter is the spiritual kingdom, which is described in Bhagavad Gita as supreme and eternal. That kingdom is never annihilated. Although material nature is subject to repeated creation and annihilation, that spiritual nature remains as it is eternally. In the 10th canto of Srimad Bhāgavatam, that spiritual nature, the spiritual world, is described as Vrindavan, Golok Vrindavan, or Vrajadham. The elaborate description of the above mentioned shloka from the 9th canto, Jato Gataha Pitra Grahad, will be found here in the 10th canto. हरे कृष्णा, थैंक यू। यहाँ देख सकते हैं भगवान का धाम के बारे में यहाँ विस्तार से सुन सकते हैं। कहाँ? ब्रह्म संहिता में। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कैसे शुरू करा? चिंतामणि प्रकर षड्मसु कल्प वृक्ष।
लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्। आगे कैसे बता रहे? लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम बतामि। यहाँ वृंदावन धाम जो भूमि में भगवान लीलाएं किया है, वो पूरा पूरा भगवान का गोलोक वृंदावन का एक रेप्लिका है। मतलब ऐसी वहां जैसे होते वहां भी ये वृंदावन में भी गोलोक में जो वृंदावन है वही है। इसलिए भगवद गीता में भगवान बताता है, 8वां अध्याय 20 श्लोका नंबर, उसमें क्या कहते हैं? द स्पिरिचुअल स्काई देयर इज अनदर इटर्नल नेचर। व्हाट इज द श्लोका? Who remembers? Transcendental to manifest and unmanifested matter. Simran, can you click that 820? Hare Krishna. You can click that, no, directly it will go. Parastasmastu bhavonyo avyakto avyaktat sanatanaha yaha sasarveshu bhuteshu nashyastu na vinashyati. So it will never go to the translation. Simran, you read the translation. Yet there is another unmanifest nature which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remains as it is. Srila Prabhupada ki jai. सर्वभूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। ये तो कभी भी विनष्ट नहीं होता है। ये आध्यात्मिक जगत को क्या कहता है? गोलोक वृंदावन। ये सबसे उत्तम है, इसलिए लिखा है इट इज सुपीरियर एंड इट इज नेवर अनिहिलेटेड। कोई भी प्रलय आने दो, महाप्रलय कोई भी आने दो, ये भगवान का दिव्य धाम गोलोक वृंदावन तो हमेशा शाश्वत है। वहां बिजली का, सूर्य देव का जरूरत नहीं है। कौन सा श्लोक है, किसको याद आता है? न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। शुरुआत न तद् भाषयते शूर्यो न शशांको। गुड कमलमुखी, से फुल्ली, कमलमुखी से दैट फुल्ली। न तद् भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। Very good. Thank you. Hare Krishna. So moving on to today's shloka. Can you move back, Simran? Simran? Back to. No, same. I have not yet finished that. No, second. That paragraph I have to finish it. Wait. Okay. So यहाँ बता रहे हैं ये imperceptible, मतलब हमको अनुमान नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान का धाम ये इतना विशेष महत्वपूर्ण है, ये भौतिक शरीर के साथ उसको अनुमान करना संभव नहीं। इसलिए वही बता रहे हैं। ये यहाँ भी बताता है that kingdom never annihilated, although material nature is subject to repeated creation and annihilation। क्योंकि भौतिक जगत तो हमेशा सृजन और संहार हमेशा होते रहते हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि भौतिक जगत का स्वभाव ऐसी है। ठीक है, आगे बता रहे हैं इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब वृंदावना, गोलोक वृंदावना और ब्रजधाम। ये सब कुछ आध्यात्मिक जगत है। सो यहाँ इतना विस्तार से जो लीला किया है भगवान ब्रजभूमि में, यहाँ गोलोक में, इसका महत्व इतना बढ़ते रहते, कभी भी खत्म नहीं। यहाँ गोवर्धन लीला, अनेक लीला है, ये पूरा हम लोग आगे सुनने वाला है। यहाँ इसमें बताता है 9th कैंटो में क्या बता रहे, जातो गतः पितृगृहात्, मतलब विल बी फाउंड हियर इन द 10th कैंटो, 10वें स्कंद में आपको मिलेगा। हरे कृष्ण। चलो अभी श्लोका नंबर 2 में जाएंगे। अभी ये श्लोक हम हिंदी में पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, हिंदी में वो करिए। ओके, जिनको हिंदी में पढ़ना है अपना हाथ उठाइए। बालकृष्णा प्रभु पढ़ सकते हैं और लता माता जी भी पढ़ेगी और करिदी माता जी वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कैन यू मूव ऑन टू हिंदी माँ? सिमरन, अच्छा मिली भी पढ़ सकते हैं।
हरे कृष्णा, उत्साह बहुत है। सिमरन, गो टू श्लोका नंबर 2. Yes, Prabhu. Is it visible now, Prabhu? Yeah, I think Kamalamukhi also can do the sharing. I think so. You have okay, no problem. I have given to you today. You have to manage it. Hare Krishna. Make it up a little more. I can see the second shloka then. Okay, I will read it for you. यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णोः वीर्याणि शंसनः. ओके, शब्दार्थ पढ़ने के लिए मैं बुलाता हूँ बालकृष्ण प्रभु, पढ़ सकता है? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, शब्दार्थ अनुवाद सब कुछ पढ़िए। शब्दार्थ यदुवंश का च भी धर्मशीलस्य, जो धर्मनिष्ठ है, नितराम अत्यंत योग, मुनि सत्तम हे मुनियों में श्रेष्ठ अथवा मुनियों के राजा सुखदेव गोस्वामी, तत्र उस वंश में अंशेना अपने अंश बलदेव के साथ अवतीर्ण अवतार रूप में प्रकट विष्णु हो, भगवान विष्णु के वीर्याणि महिमामय कार्यकलाप संस कृपया वर्णन करे न हमसे। अनुवाद में तात्पर्य भाई श्लाभुवाद, जय श्लाभुवाद। हे मुनि श्रेष्ठ, आप परम पवित्र तथा धर्मशील यदुवंशियों का भी वर्णन कर चुके हैं। अब हो सके तो कृपा करके उन भगवान विष्णु या कृष्ण के अद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें जो यदुवंश में अपने अंश बलदेव के साथ प्रकट हुए हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण, एक मिनट। अनुवाद में उन्होंने कैसे प्रार्थना कर रहे, ये हमको सीखना चाहिए। आचार्य लोग से हम लोग देखते हैं ना भगवत गीता में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यहाँ परीक्षित महाराज एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है। हर वक्त उनको ये भागवत सुनने के लिए बहुत इच्छुक है। इच्छुक तो सबको है, मगर पूछने के लिए एक तरीका होता है। यहाँ हम लोग सीख सकते हैं। उन्होंने क्या बता रहा है, इफ यू विल काइंडली डिस्क्राइब, अगर आप चाहते हैं तो मुझे विस्तार से समझा दो, जैसे भगवान विष्णु और कृष्णा और कैसे यदुकुल में उत्पन्न किया है बलदेव के साथ, उनका जितना भी विस्तार है लीला, और उनका जितना भी विस्तार है वो सब कुछ हमको समझा दीजिए, ऐसे बता रहे हैं। हरे कृष्णा। अभी आगे पढ़ने के लिए मैं बुलाता हूँ। खरीदी माता जी है, पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। कोई ऑफिस में है इसलिए हम लोगों को तकलीफ होता है, दिखते हैं। ओके, धनिष्ठा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। तात्पर्य बाय शिला प्रभुपाद, जय शिला प्रभुपाद। ब्रह्म संहिता 5.1 में बतलाया गया है कि विष्णु तत्व के उद्गम कृष्ण ही हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद कहे जाने वाले कृष्ण ही परम नियंता हैं। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम हैं। उनका कोई अन्य उद्गम नहीं, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण है। यस्य कनिश्चित सतकार। एक मिनट माता जी, मैं पढ़ता हूँ। नहीं तो सिमरन पढ़ सकते हो तो सिमरन पढ़ दो। सिमरन। यस प्रभु। यस्यैक निश्वसित कलामथवल। Wait. I think you are not familiar. Okay, I will do it. यस्यैक निश्वसित कालम अथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् स यस्य कला विशेषो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। यस्यैक निश्वसित। ओके, माता जी आगे पढ़िए अनुवाद। असंख्य ब्रह्मांडों के प्रधान ब्रह्मागण महाविष्णु के एक श्वास की अवधि के बराबर जीवित रहते हैं। महाविष्णु
जिन आदि भगवान गोविंद के अंश मात्र हैं, मैं उनकी पूजा करता हूँ। ब्रह्म संहिता 5.48। गोविंद या कृष्ण आदि भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहाँ तक कि वे महाविष्णु, जिनकी श्वास से करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, कृष्ण के कला विशेष अर्थात अंश के भी अंश हैं। महाविष्णु संकर्षण के अंश कला हैं, जो नारायण के अंश हैं। नारायण चतुर्व्यूह के और चतुर्व्यूह कृष्ण के प्रथम प्राकट्य बलदेव के अंश हैं। अतः जब बलदेव समेत कृष्ण आविर्भूत होते हुए तो उनके साथ सारे के सारे विष्णु तत्व प्रकट हुए। महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे कृष्ण तथा उनके महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें। इस श्लोक का एक दूसरा भी अर्थ निकलता है। यद्यपि शुकदेव गोस्वामी सबसे बड़े मुनि थे, तो भी वे कृष्ण का आंशिक अंशेन वर्णन ही कर सके, क्योंकि कृष्ण का पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। कहा जाता है कि अनंत देव के हजारों सिर हैं, और यद्यपि वे अपनी हजारों जीवों से कृष्ण का वर्णन करने का प्रयत्न करते हैं, तो भी यह वर्णन अधूरा ही रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ हम लोग थोड़ा विस्तार से समझने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि अनेक भक्त लोगों को इधर उधर कुछ ना कुछ डाउट्स आते रहते हैं। यहाँ प्रभुपाद ये तात्पर्य में समझाता है। कैसे समझाता है? यहाँ ब्रह्म संहिता को रेफरेंस करके उन्होंने समझाता है। पहला तो ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारण। मतलब जो विष्णु है वो भगवान का उद्गम है, राइट। इसलिए यहाँ लिखता है कृष्णा इज द ऑरिजिन ऑफ विष्णु तत्व। मतलब जितना भी विष्णु तत्व है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? भगवान श्री कृष्ण से। आगे इतना विस्तार है यहाँ, उसके बारे में आगे ब्रह्मा जी कैसे बताते हैं? यश्यैक निश्वचित कालम अथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंडनाथाः विष्णुर्महान सखी एक कला विशेषो। कला बोलेगा तो अनेक है, राइट। अभी हम लोग कैसे करेंगे? ये दूसरा पैराग्राफ पे भगवान गोविंद के बारे में जैसे शुरू करता है, देखिए यहाँ कैसे बताता है। गोविंद और कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सन, वही ये सबसे प्रथम है। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम, राइट। उनसे क्या होता है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो भी स्पष्ट हो गया। भगवान कृष्ण सबसे पहला है। फिर आगे महाविष्णु के बारे में बोलेगा तो महाविष्णु का श्वास से अनेक ब्रह्मांड शुरू होता है, राइट। अनेक ब्रह्मांड के अंदर अनेक विष्णु पहुंच जाता है। फिर जितना भी उसका अंदर जीव गया हुआ है हर एक ब्रह्मांड के अंदर, उनको साथ साथ एक और विष्णु एक्सपेंशन हो रहा है, वो भी परमात्मा रूप, राइट। अभी देखिए यहाँ कैसे शुरू कर रहा है। हम लोग पहला शुरू करेंगे। भगवान श्री कृष्ण, उनका विस्तार, पहला विस्तार कौन है? बलदेव है। बलदेव के बाद उसके बाद चतुर्युग में कौन आ रहा है? संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर उसके बाद संकर्षण से क्या हो रहा है? हमको देख सकते हैं महाविष्णु, राइट। फिर कला विशेषु बोलेंगे तो अनेक लीला है। यहाँ हमको देख सकते हैं भगवान विष्णु का चतुर्युग कैसे होता। देखिए पहला जो कारणोदक साई विष्णु, राइट, क्योंकि संकर्षण से आया हुआ है महाविष्णु। फिर आगे देखिएगा तो क्या होता है? पहला कौन आ रहा है? कारणोदक साई विष्णु। कारणोदक साई विष्णु बोलेगा तो उन्होंने काशल ओशन में उन्होंने लेटे हुए, उनका श्वास लेते हुए अनेक ब्रह्मांड शुरू होता है उनका शरीर से। हम लोग देख सकते हैं जैसे भागवतम पहला स्कंद का जो कवर है ना, उसमें ऊपर अनेक फोटो है, उसमें देख सकते हैं, राइट। तो उन्होंने उनका शरीर से ही आगे ये भी आ जाता है, क्या है? महत्तत्व। महत्तत्व तो ऐसी सुप्त अवस्था में है, वो काम नहीं कर रहा।
फिर क्या कर रहा है, करना तो साई विष्णु उनका दृष्टि उसके ऊपर लगा, फिर उन्होंने चालू होता है, राइट। उसमें से हमको देख सकते हैं अनेक जीव, सब कुछ उसमें से शुरू होता है। प्रकृति, प्रकृति बोलेगा तो 3 प्रकार का जो गुण है उसमें भी वो भी होता है। अनेक विषय हम वहां से शुरू होता है, राइट। अभी देखिए कारणोदय विष्णु से अनेक ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मांड के अंदर यही कारणोदय से विष्णु आगे कैसे एक्सपैंड हो रहा है, गर्भोदय साई विष्णु, अनेक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदय साई विष्णु। गर्भोदय साई विष्णु बोलेगा तो उन्होंने मिल्की ओशन में लेटे हुए, उनका नाभि से उत्पन्न होता है एक कमल, वो कमल के ऊपर कौन आ रहा है, ब्रह्मा जी। इसका मतलब हर एक ब्रह्मांड को हर एक ब्रह्मा, राइट। सो आगे देखेगा तो हर एक ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ व्यवस्था व्यवहार करने के लिए सब कुछ रेडी हो गया, क्योंकि यहाँ महातत्व से जो भी क्या है वो अंदर गया है, ठीक है। आगे देखेगा तो जितना भी जीव जाल अंदर गया हुआ है हर एक ब्रह्मांड में, उनके साथ उनको जो चाहिए उनको देने के लिए, प्रदान करने के लिए कौन होता है, भगवान। ये गर्भोदय साई विष्णु का और एक विस्तार होता है, उनका नाम है, हम लोग देख सकते हैं, क्षीरोदय साई विष्णु। तो क्षीरोदय साई कौन है, और कोई नहीं है, परमात्मा रूप में है। एक एक व्यक्ति को जो चाहिए वो प्रदान करना। इसलिए हम लोग देख सकते हैं ना, शास्त्र में लिखा है एक वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर एक शाखा है, शाखा के अंदर 2 पक्षी है। एक पक्षी तो हमेशा देखते रहते हैं, कुछ नहीं करता है, और दूसरा पक्षी घूमते रहते हैं, कुछ लेके आते हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे, राइट। वो कौन है, यही है जीव। और दूसरा देखते रहते वो कौन है, परमात्मा। कौन है वो, क्षीरोदय साई विष्णु। वासुदेव सर्वमिति बता ना, वही, ठीक है। हरे कृष्ण। यहाँ आगे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से क्या बता रहे, टू डिस्क्राइब कृष्णा एंड हिज ग्लोरियस एक्टिविटीज, उनका जितना भी लीला है उसके बारे में समझाने के लिए सुखदेव गोस्वामी ये तो महामुनि है, उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना पिताश्री से उन्होंने भागवत पूरी तरह से बराबर ग्रहण किया है। उन्होंने अभी समझाने वाला है। अंशेन, अंशेन मतलब पार्शियल, थोड़ा अंश। अनंत देव, हम लोग देखते हैं ना, अनंत देव कौन है, वही बलदेव से जो एक्सपेंशन होता है, संकर्षण, राइट। सो बलदेव, सॉरी संकर्षण, सॉरी, हाँ, अनंत देव कौन है, अनंत देव पूरा ब्रह्मांड को अपना सिर पे मैनेज करने वाला, राइट। उनका कितना सिर है, हजारों हजारों है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में स्तुति करने के लिए कोशिश कर रहा, कौन, अनंत देव। कैसे स्तुति कर रहा है, भगवान का प्रशंसा करने के लिए, मगर इतना भी उन्होंने कर लिया, फिर भी बताते ये खत्म नहीं। भगवान का जो लीला और गुण हमेशा अंत ही नहीं। भगवान स्वयं कहता है भागवतम, राइट, किसको बता रहा है, अरे मुचकुंद को, मुचकुंद को बता रहा है, राइट। वो तो हम लोग देख सकते हैं 10वें स्कंद में अध्याय 51 में आ जाता है, राइट। मुचकुंद को भगवान विशेष दर्शन दे रहे और ये भी बता रहे। हरे कृष्ण। अच्छा, श्लोक नंबर 3 में जाएंगे। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावनः कृतवान यानी विश्वात्मा तानी नो वद विस्तरात। ठीक है, अभी ये पढ़ने के लिए कैन यू मूव ऑन टू हिंदी? There are little 2 devotees waiting to read. Let me give them chance. Millie and Shiv Thakur Mataji, both of you share this sloka. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Shall we start from the Shabdas, Prabhuji? हाँ, शब्दार्थ अनुवाद आप पढ़िए, तात्पर्य मिली माता जी पढ़ना। प्रभुजी, ये श्री प्रभुपाद द्वारा है। हाँ, शब्दार्थ में श्रीला प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। अवतर्य, अवतार लेकर, यदोहो वंशे, यदुवंश में, भगवान भूत भावनः, विराट जगत के कारण स्वरूप, कृतवान संपन्न किया, यानी जो भी कार्य,
विश्व आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड के परमात्मा तानी उन सभी कार्यों को नह हमसे वद कहें विस्तारात विस्तार से। हरे कृष्ण। अनुवाद भी पढ़िए। अनुवाद पर श्रील प्रभुपाद। परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो विराट जगत के कारण हैं, यदुवंश में प्रकट हुए। आप कृपा करके मुझे उनके यशस्वी कार्यकलापों तथा उनके चरित्र का आदि से लेकर अंत तक वर्णन करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ने के लिए मैं सीमा करना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। ठीक है, श्यामलांगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ पढ़िए माँ। तात्पर्य प्रभु जी, इस श्लोक में आए कृतवान यानी शब्द सूचित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, तात्पर्य वह श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में आए कृतवान यानी शब्द सूचित करते हैं कि हम इस धरा में रहते हुए कृष्ण ने जितने भी कार्यकलाप किए वे मानव समाज के लिए लाभप्रद हैं। यदि धर्मवेत्ता, दार्शनिक तथा सामान्य लोग कृष्ण के कार्यकलापों का केवल श्रवण करें तो उनको मुक्ति मिल सकती है। हमने कई बार कहा है कि कृष्ण कथा दो प्रकार की है। एक तो भगवत गीता जिसे भगवान कृष्ण ने अपने विषय में कहा है, और दूसरी क्या हुआ? I got disconnected. Do it. और दूसरी श्रीमद् भागवत जिसे सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण की महिमा के विषय में कहा है। जो भी व्यक्ति कृष्ण कथा में थोड़ी सी भी रुचि दिखलाता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्तः संग परम रजेत। भागवत 12.3.51। केवल कीर्ति करने अथवा बारंबार कृष्ण कथा कहने से मनुष्य कलयुग के कलमश से मुक्त हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, यारे देख तारे कहा कृष्ण उपदेश। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 7.128। कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य है कृष्ण के विषय में सुनकर भव बंधन से निवृत्त हो जाना। हरे कृष्णा। यहाँ भाव बंधन से मुक्त है, क्योंकि जो भी व्यक्ति ये कृष्ण भावनामृत में प्रवेश करेगा तो उनको बहुत कुछ विषय के ऊपर संदेह रहता है, क्योंकि हमेशा संशय होते रहते हैं अंदर आने के बाद। जो नया प्रवेश करेगा तो उनको और भी तकलीफ होता है। क्या कारण है? भगवान सबसे पूर्ण पुरुषोत्तम बोलेगा तो वो मानने के लिए टाइम लगता है। यहाँ भगवान का प्रशंसा में कैसे बता रहे चैतन्य महाप्रभु, मुक्त संग परम प्रजित, मतलब सिर्फ सुनने से, कीर्तनाद एव कृष्णस्य, वो जो शब्द है ये वे एक तो एकदम, क्योंकि भगवत गीता में हमेशा भगवान एकदम वेरी सेल्फिश, उन्होंने जितना भी अपना ऊपर हमेशा प्रशंसा करते रहते, राइट। ही इज टॉकिंग बोस्टिंग हिमसेल्फ। क्या कारण है? पूर्ण पुरुषोत्तम ही है, इसलिए उन्होंने ऐसे ही बता रहा है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे? कीर्तनाद एव कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण का बारे में जो नाम और जो भगवान का रूप और लीला और उनका गुण जो भी सुनने वाला है उनको क्या प्राप्त हो सकता है? मुक्त संग। ये भौतिक जगत का छुटकारा। हर एक व्यक्ति तो क्या मांग रहा है आजकल? आनंद। आनंद। यहाँ तो आनंद प्राप्त होने वाला क्या नहीं है, क्योंकि भगवद गीता में भगवान कहता है दुःखालयम अशाश्वतम। मगर कृष्ण भावनामृत में जो रहते हैं उनको दुःखालयम अशाश्वतम नहीं है। क्या कारण है? भगवान के बारे में उन्होंने बात करते रहते हैं और दूसरे के साथ हमेशा कथा करते रहते हैं, इसलिए उन लोगों को, बाकी व्यक्ति को ऐसे होता है। तो यहाँ देखना चाहिए हमको क्या करना चाहिए? कीर्तनादेव कृष्ण से, हमेशा के लिए सततम कीर्तयन्तो माम, हर वक्त, राइट। अच्छा, मुक्त संगः परम वर्जित बोलेगा तो कोई सवाल पूछने वाला है, अच्छा शिव जी को दे नहीं सकते क्या मुक्ति, राइट। मगर शास्त्र क्या कहता है? मुक्तिदाता क्या लिखा है?
मुकुंदा, और कोई नाम नहीं है, राइट। इसका मतलब मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण, राइट। हम लोगों को 12वां स्कंद में देख सकते हैं मार्कंडेय महर्षि, उन्होंने जैसे ही भगवान को देखते हैं बानियन लीफ में, उन्होंने अपना दिव्य रूप दिखा रहा है, बालक रूप। वो देखिए क्या बताता है, यही है बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, मेरा मन यही बाल मुकुंद का स्मरण करते रहे। मतलब मुक्ति प्राप्त आसानी से हो जाती, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम लोगों को यहाँ, इसलिए क्या बता रहे, द सुपर सोल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा इज अ कॉज, सर्व कारण कारणम। हम लोग ब्रह्म संहिता में देखते हैं, यहाँ वही बता रहे, सारी जगत का कारण कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने क्या किया, यदुवंश में अवतरित किया है। यदुवंश में अवतरित क्यों किया है, उसके लिए अनेक कारण है, हम लोग देख सकते हैं। किसमें बताइए, क्यों यदुवंश में भगवान ने अवतरित किया? क्योंकि कुंती महारानी क्या बताता है, अनेक श्लोक में, 3-4 श्लोक में बताता है, इसलिए भगवान उसमें अवतरित किया है, राइट। उसमें एक विशेष महत्वपूर्ण है, जैसी वसुदेव और देवकी भगवान से प्रार्थना किया, अपना पुत्र बनकर आइए करके, इसलिए भगवान यदुकुल वंश में आया, राइट। और यदुकुल वंश को ऊंचा करने के लिए भगवान भी वहां आया। यदुकुल वंश में जो भी है, हर एक तो भगवान के साथ हमेशा निवास करने वाला है, गोलोक वृंदावन में। इसलिए यदुवंश का जैसी संहार हो गया, अंत में सब लोग वापस कहाँ गया, गोलोक वृंदावन। बाकी लोग को समझ में नहीं आएगा कि एक भगवान का वंश ऐसे बेकार कैसे किया करके, क्योंकि उन लोगों को समझ में, भगवान का जो इच्छा है, भगवान का जो निश्चित है, वो किसी को समझ में नहीं, राइट। मगर कोई क्या कहता है, उसी दिन भी एक माता जी बता रही थी कोई सत्संग में, वो गांधारी ने उनको श्राप दे दिया, इसलिए पूरा वंश ना ऐसा नहीं है, भगवान जो निश्चित करता है वही, राइट। स्वस्मय स्वप्रीति, अपना प्रीति के लिए उन्होंने कर रहा, राइट। इसमें दूसरा कुछ श्राप देकर कुछ फायदा नहीं है, राइट। यहाँ वही बता रहे, यहाँ उन्होंने बताता है, तो यदुकुल वंश में उन्होंने अवतार किया है, उनका जितना भी दिव्य लीला का बारे में समझा दो, और उनका दिव्य गुण के बारे में समझा दो। कैसे? प्रारंभ से लास्ट तक, मतलब जैसे अवतरित किया है वैसे अपने आप दाम वापस जाता है, वैसे पूरा बता दो, राइट। यहाँ देखिए हर एक श्लोक में हम लोगों को समझ सकते हैं, परीक्षित महाराज का जो इतना इच्छा है, ये पूर्ण तरफ भगवान के बारे में सुनने, क्योंकि ये मन में आशा ऐसी होना चाहिए। देखिए हम लोग तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, आशा एक आ गया तो और आशा बढ़ते रहते, कम नहीं होता, राइट। मगर ये आशा को कैसे खत्म करेंगे? एक ही उपाय है, बस इतना ही, संतुष्ट रहना है। कैसे संतुष्ट रहना है? ये भौतिक जगत में संतुष्ट रह सकता है? नहीं है। मगर क्या कर सकते हैं? भगवान का लीला को सुनते रहो, अपने आप क्या हो जाएगा, हमारा मन तो भगवत विषय में लग जाएगा, तो भौतिक जगत का छुटकारा, यही सरल उपाय है। हरे कृष्णा। अभी थोड़ा समय कीर्तन का है, स्मृति है। स्मृति, कैन यू स्टार्ट द कीर्तन फॉर 10 minutes? कृष्ण प्रभु, one निमिषं प्रभु, 1 minute. हरे, या हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. Do for 10 minutes. हरि नाम only, yes प्रभु, yes प्रभु. हरे कृष्णा. 1 minute प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Prabhu, is my voice audible, Prabhu? Prabhu, you're on mute. It's audible. Continue. Oh, okay, Prabhu. My father said it was not audible. Okay, Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Smriti. She is the daughter of Hare Krishna. She is the daughter of
प्रवीर कृष्ण प्रभु एंड सुमधुरी दासी उनका पुत्री है। ये लोग अजमान में कुछ साल रहते थे, अबू धाबी में कुछ साल रहते थे। इनका पिताश्री और हमारा सोनापुर से उन्होंने हमेशा सत्संग में जुड़े हुए, यहाँ दुबई में उन्होंने दीक्षा भी लिया है। बहुत सुंदर फैमिली है। आजकल यहाँ चेन्नई में सेटल हो गया, 6 साल ऐसे कुछ हो गया। They are doing lot of seva here also. He is a very good cook. Her father, she has got one more brother also, Raghava. Father cooks so well, he goes to various temples in Tamil Nadu and does so much of seva. Hare Krishna. Okay, so moving on to shloka number 4. हरे कृष्णा। सभी भक्तों से एक निवेदन है, जो श्लोक हमने मनन करने के लिए बता रहे, आप जरा लिख के रख दो बाय हार्ट करके और बाद में बताइए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ तो प्रभुपाद हमेशा इस श्लोक का उनका 108 श्लोका में भी ये है। हरे कृष्ण। निवृत्तत शैर उपगीयमानात् भव औषध श्रोत्र मनोभिरामात् निवृत्तत शैर उपगीयमानात् भव औषध श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान व्रजेत बिना पशुघ्नात् पुमान व्रजेत बिना पशुघ्नात्। ओके। निवृत्तत शैरुपगीयमानात् भव औषध श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान व्रजेत बिना पशुघ्नात्। Okay. Ratna Bhushan, can you read the sloka once? Quick. Okay. So moving on to Shabdarth. Karidhi Mataji, can you do that? Hare Krishna. मैं सबको चांस देने के लिए बुलाता हूँ, अगर नहीं हो सकते तो बताइए। हरे कृष्णा। ठीक है, लता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। शब्दार्थ अनुवाद दोनों पढ़िए। हाँ, अनुवाद बाय शील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। निवृत्त से मुक्त, तर्षे काम या भौतिक कार्यों से, उपगीय मानात वर्णित या गाया जाने वाला, भव औषधात भौतिक रोग का सही औषधि से, श्रोत कानों से सुनने की विधि, मन के लिए विचार का विषय, अभिरामात ऐसे महिमा वर्णन की सुहावनी ध्वनि से, कौन उत्तम श्लोक श्री भगवान का, गुण अनुवादात ऐसे कार्यों का वर्णन करने से, पुमान मनुष्य विरजेत अपने आप को विलग रख सकता है, बिना रहत पशुधनात कसाई अथवा अपने आप का ही वध करने वाले से। अनुवाद बाय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन के आनंद का आस्वाद उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो इस भौतिक जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते हैं। श्री भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बुद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। अतः कसाई, पशुघाती या अपने आप को ही मारने वाला आत्मघाती के अतिरिक्त श्री भगवान की महिमा को सुनना कौन नहीं चाहेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। So this verse is very important. अभी हिंदी में पढ़ लिया मैंने, इसके बारे में इंग्लिश में समझा था। ठीक है, यहाँ देखिएगा तो निवृत्ततर्षे उपगीयमानात्, जिनको निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग बोलते ना, निवृत्ति मार्ग बोलेगा तो ये भौतिक जगत का छुटकारा, मतलब one has to get out of the repeated cycle of birth and death. So that is the one, right? So what is it says? Tarshay means the material activity. Upagiyamanath. So describing or singing the words. It's very simple, right? What is more important? Bhava Aushadha. Aushadha means medicine, and Bhava Aushadha means to get relieved from the cycle of birth and death. So this is the Bhava Aushadha. When we talk about the Bhava Aushadha, we always remember the wonderful Sri Vaishnava Sampradaya Kulasekara Alvar. He has sung this in the Mukunda Mala. He says there is no Aushadha other than
Krishna Aushadha. He says it's elixir. What does he say? He says it's a Divya Aushadha. The last word he says Divya Aushadha. He talks about everything Aushadha, Aushadha, and finally when he talks about the Krishna's name, he says this is a Divya Aushadha. So that means here there is only one medicine. Okay, there can be so many allopathy medicine, right? I remember His Holiness Mahavishnu Goswami Maharaj. He came to Dubai few times. In the Sindhi hall, he was giving lecture. At that time, he was telling, all we are doing is we are eating lots of sin. Everybody was blinking. What is it? Maharaj is talking this sin. Then he said, you are going and taking medicines, right? Medicine. What is the meaning? Medicine. That itself is a sin. And on top of it, you are taking erythromycin. So many mycins are there, right? So you are consuming what? All the type of sin. That's what he said. So that's only the right Aushadha. He used the word Aushadha. So that's the only Aushadha is the holy name. Right? That's why it says, for the Kali Yuga, there is no other way, no other way, no other way. What is that? Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Hare Namaiva Kevala. So here also, anything related to Krishna, this is what Prabhupada always says, he is always giving 4 easy way to get into the contact with the Lord. The Lord's mercy is so wonderful, one can catch any one of the 4. What is that? Nama, Rupa, Leela, Guna. So any one of that, if you get it, you will get out of this material cycle. So that's what it says. The translation, glorification of the Supreme Lord is performed by the Parampara system. Why the Parampara system? Because every Tom, Dick and Harry cannot come. क्योंकि यहाँ देखिए, अगर कोई व्यक्ति भागवत के बारे में समझाने के लिए कोशिश कर रहा है, इतना तो कम से कम उनको होना चाहिए, उनको गुरु होना चाहिए, वो परंपरा से जुड़ा हुआ है. और वो परंपरा कैसे होना चाहिए? वो प्रामाणिक परंपरा. राइट? अभी देखिए 4 संप्रदाय बोलते हैं. राइट? What are the 4 sampradaya? That is Brahma, then Kumara, then Rudra, and Shri Sampradaya. So these are the authentic 4 one through which one has to follow that. So we belong to, ISKCON belong to, what does it say? Brahma, Madhva, Gaudiya Sampradaya. So there is a chain of disciplic succession. If you look at the Bhagavad Gita introduction, Prabhupada writes a chain of disciplic succession. So the chain cannot be disturbed. It has to continue. So that's why Prabhupada is writing Parampara system is very important. So it is conveyed through the disciplic succession. Such a glorification relished by those no longer interested in the temporary glorification of the cosmic manifestation. भौतिक जगत का जो वर्णन है और बाकी जितना विषय में जो भी करता है उसको रुचि नहीं है, उसको क्या कहता है? भक्त बोलते हैं. So he is completely relieved from the material attachment and he has got attachment only towards Krishna. So description of the Lord are the right medicine for the conditioned soul. So हर एक जीव को चाहिए क्या? एक ही औषध, परम औषध. So undergoing repeated birth and death, right, to get out of it. Therefore, who will cease hearing such glorification? अगर कोई व्यक्ति छोड़ेगा क्या भगवान के बारे में सुनने के लिए? ओ मेरे को दूसरा कुछ काम है, ऑफिस का काम है, मैं और कुछ पोता को देखने का है, बेबी सिटिंग है, ये है, ऐसे नहीं हो सकता. क्योंकि जैसी भागवत कथा शुरू हो गया तो क्या होना चाहिए? सबसे प्रथम कार्य यही है भागवत कथा सुनना. सो दिस इज व्हाट द टॉप मोस्ट. अगर कोई व्यक्ति छोड़ दिया होगा तो उनके बारे में भागवतम क्या कहता है? एक्सेप्ट a butcher or one who kills his own self. कसाई घर में जो काम करता है उसको कभी भी भगवत कथा में रुचि नहीं होता. अगर कोई व्यक्ति को कथा में रुचि नहीं है तो उसका कह सकता है कसाई घर. So he is a butcher. He is not interested in the Krishna katha. Then another next what is that? Or one who kills his own self. Atmahatya. Right? What does it say? The shloka says Pasugnat. So there are so many people making suicide. Why? Because they don't have any interest in the katha. If their mind is focused in Krishna katha, their mind will not say
take the method of suicide. So one should know, if somebody is not taking the Krishna Katha, also they are wasting their human life. That's also can be considered. The meaning can be considered like that. Okay. So this way, it's a very important shloka. Please, all of you, repeatedly by heart it. After some time, you call and tell me the shloka. Okay. So now moving on to the purport, let us read it in English. Okay, I request Venkatraman Prabhu, can you start the reading? பிரபுஜி அந்த எந்த ஸ்லோகன் சொல்றீங்களா? 30 31? No, it is 10:14. 10:14. It is on the screen. You can read the translation. Prabhu, purport is there on the screen. You can read it. I'm not able to see that. It is 10:14. Can I bring the book and read? You have it, this Prabhupada book, you have it with you? No, only I have that Gita Press. No, that will not work. No, this is what required, no? Okay. Can I request Uma Mataji, are you able to see that purport? Uma Chandrasekhar. Okay, she is not answering. Hare Okay, Krishna. moving on to, yeah. Hare Krishna. Yeah, can you read that purport? First paragraph. That is, I am having in Tamil. No, you got in English. No, this is English and Hindi. But you can read it from the screen. Okay, I request okay. Kavita Mataji. Okay, Mataji, no problem. I request Kavita Mataji, can you read from the screen? Yes, Prabhu. Yeah, start. Purport by Srila Prabhupada. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. In India, it is the practice among the general populace to hear about Krishna either from Bhagavad Gita or from Srimad Bhāgavatam in order to gain relief from the disease of repeated birth and death. Although India is now fallen, when there is a message that someone will speak about Bhagavad Gita or Srimad Bhāgavatam, thousands of people still gather to hear. This verse indicates, however, that such recitation of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam must be done by persons completely freed from material desires. Nivarta Tarsaye. Everyone within this material world, beginning from Brahma down to the insignificant ant, is full of material desires for sense enjoyment, and everyone is busy in sense gratification. But when thus engaged, one cannot fully understand the value of Krishna Katha either in the form of Bhagavad Gita or in Srimad Bhagavatam. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. So Prabhupada यहाँ क्या बता रहा है? इंडिया में कोई भी टाउन में अगर भगवत गीता भागवत कथा शुरू होएगा तो हजार लोग आ जाता है सुनने के लिए. क्या कारण है? उन लोगों को आदत है, क्योंकि भारतवर्ष में हर एक जीव को इतना संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है, हर वक्त उन लोगों को आसक्ति होता है ऐसी कृष्ण कथा सुनने के लिए. अगर यहाँ ये प्रभुपाद ये भी बताता है, ऑल्दो इंडिया इज नाउ फॉलन, मतलब आजकल तो भारतवर्ष में ऐसी कथा का बारे में रुचि लोगों को उतना नहीं रहता है पहला जमाने में जो होता था. फिर भी ऐसी कथा शुरू हो जाएगा तो अनेक भक्त लोग आके सुनने के लिए तैयार है. इसका मतलब यहाँ देख सकते हैं ये हर वक्त ये भागवत कथा और भगवत गीता कथा हमेशा चलते रहना चाहिए. मगर किससे शुरू होना चाहिए? Must be done by a person completely freed from material desires, जिनको ये भौतिक जगत का आसक्ति नहीं है. निवृत्त तर्षय, उन्होंने शुरू करना चाहिए. इसलिए देखेगा तो भारतवर्ष में अनेक जगह पे इस्कॉन आंदोलन में बहुत लोग ये भागवत कथा और भगवत गीता कथा चलता रहता है. राइट? Everyone must in the desire of beginning from the Brahma down to ant is full of desires. Right? काय के लिए आशा बढ़ता है? इंद्रिय तृप्ति के लिए. जितना भी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो मग्न होता है, उनको क्या होता है? कृष्ण कथा का रुचि नहीं होता. मगर एक बार कथा सुन लिया होगा तो उन्होंने क्या होता है? वो भौतिक विषय को छोड़ देता है. हरे कृष्णा. So can I request
Nirmala Ramaraj Mataji to read the next paragraph. Nirmala Mataji. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. If we hear the glories of the Purport by Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. If we hear the glories of the Supreme Personality of Godhead from liberated persons, this hearing will certainly free us from the bondage of material activities. But hearing Srimad Bhāgavatam spoken by the professional reciter cannot actually help us achieve liberation. Krishna Katha is very simple. In Bhagavad Gita, it is said that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. As he himself explains, Matat Parattaram Nanyat Kinjit Asti Taranjaya. O Arjuna, there is no truth superior to me, Bhagavad Gita 7.7. Simply by understanding this fact, that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, one can become a liberated person. But especially in this age, because people are interested in hearing Bhagavad Gita from the unscrupulous persons who depart from the simple presentation of Bhagavad Gita and distort it for their personal satisfaction. They fail to derive the real benefit. There are big scholars, politicians, philosophers, and scientists who spoke on Bhagavad Gita in their own polluted way, and people in general hear from them, being uninterested in hearing the glories of the Supreme Personality of Godhead from the devotee. A devotee is one who has no other motive for reciting Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam than to serve the Lord. Sri Chaitanya Mahaprabhu has therefore advised us to hear the glories of the Lord from the realized persons. Bhāgavata Paradya Bhāgavata Stane. Unless one is personally a realized soul in the science of Krishna consciousness, a neophyte should not approach him to hear about the Lord, for this is strictly forbidden by Srila Sanatana Goswami, who quotes from the Bhatna Purana. Mataji, wait. Okay. So let us try to understand this paragraph before we go to that. In the meanwhile, Hare Krishna, Mukunda Mala, that verse is 33, I think so. Aushadam. If you can take it out, well and good. Subhash is also there. I think he can also help. Hare Krishna. Okay. So this paragraph, यहाँ ये दूसरा पैराग्राफ में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? ये भागवत कथा सुनने के लिए ऐसी प्रोफेशनल वाला बोलेंगे तो जिनको भौतिक जगत में आसक्ति है, जो इंद्रिय तृप्ति में मग्न है, वैसी ही व्यक्ति से सुनना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है, पहला पैराग्राफ में प्रभुपाद क्या बता रहा था? निवृत्त तर्षय, जिनको भौतिक जगत में रुचि नहीं है उनसे सुनना है। मगर इसमें क्या लिखते हैं पैराग्राफ में? जिनको रुचि है, जिनको इसमें आसक्ति है, उनको छोड़ना है। 32 it is okay. Keep the translation also along with that. Okay. Hare Krishna. So यहाँ बता रहे आगे क्या होता है, ऐसी व्यक्ति को ये भागवत कथा असली रूप का देना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारा भगवत गीता में क्या लिखते हैं? भगवत गीता as it is, मतलब असली रूप में, यथा रूप में। यहाँ इसलिए यहाँ बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम समझना चाहिए, तो सुप्रीम लॉर्ड समझना चाहिए। अगर उसमें किसी को डाउट होगा तो वो क्या करना पड़ेगा? जैसी हम लोग बता रहे ना, पहला ग्रेजुएट करो। ग्रेजुएट कैसे करेंगे? भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता सही तरह से पढ़ लो, उसमें से समझ लो ये भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, सुप्रीम लॉर्ड। क्या बता रहे भगवान 7वां अध्याय में 7वां श्लोक में? मत्तः परतरम नान्यते किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमितं प्रोतम शूत्रे मणिगणा इव। राइट। तो इसका मतलब हमको यहाँ देख सकते हैं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। जिन्होंने उसी तरफ उनको समझ लिया है, वही भक्त को भागवतम के बारे में रुचि बढ़ता है। क्या कारण है? यहाँ भागवतम में हर वक्त भगवान का संबंध में अनेक लीला है। राइट। अगर कोई व्यक्ति को उसमें रुचि नहीं है तो उनका मन में क्या होता है? हमेशा कलंक, मतलब वो निर्मल नहीं है, मल के साथ है। ऐसी व्यक्ति से कभी भी सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सुनने वाला को उन्होंने और क्या करेगा? अपना मल को दे देता है, कलंकित करेगा। इसलिए ऐसे ही नहीं सुनना चाहिए। द डिवोटी हु इज हैज नो अदर मोटिव फॉर रिसाइटिंग। ये देखिए क्या लिखता है? अगर कोई व्यक्ति को उसका अंदर
उद्देश्य नहीं है, प्रतिफल नहीं है, ऐसी व्यक्ति से सुनना चाहिए। क्योंकि बाकी प्रोफेशनल लीडर बोलेगा तो उन्होंने कैसे शुरू करता है, प्रभुपाद बताता है, वो लोग सप्ताह करेंगे के लिए आएगा, मगर उन्होंने ऐसे ऐसे इतना सब रेडी करके रख लो, ऐसे बहुत कुछ उन्होंने यम नियम बताता है। किसके बारे में? भौतिक विषय के बारे में, राइट। उन्होंने ऐसी क्या कर रहे हैं, अपना इंद्रिय तृप्ति के विषय के बारे में बहुत कुछ बात करेगा। ऐसी व्यक्ति के साथ करना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। इसलिए प्रभुपाद क्या बता रहे? सो इट विल डिस्टॉर्ट मतलब जो असली जो अनुवाद है उन्होंने ठीक से नहीं बता सकते हैं, राइट। आगे यहाँ प्रभुपाद बताता है अनलेस वन इज रियलाइज्ड सोल। रियलाइज्ड सोल मतलब कृष्ण भावनामृत में उनको अच्छी तरह से रुचि बन गया, राइट। उन्होंने जैसी पिछला श्लोक में बताया, निवृत्त तस्य, भौतिक विषय में आसक्ति नहीं है, उनको अंदर पर्सनल कुछ उद्देश्य नहीं है, उसमें फल ढूंढता नहीं है, ऐसी व्यक्ति से सुनना चाहिए। क्या कारण है? उसको क्या कहते हैं? सेल्फ रियलाइज, मतलब वो आत्म तत्व में रहता है, उनसे सुनना चाहिए। आत्म साक्षात्कार जो किया है उनसे सुनना चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं? भागवतो परो डियर भागवत स्थाने। Unless one who is personally a realized soul in the Krishna consciousness, a neophyte should not approach him. अगर नहीं है तो उनसे कभी भी नया भक्त सुनना नहीं चाहिए। इसलिए कृष्ण भावनामृत में जो भी भक्त आया हुआ है उनको हमेशा क्या बताएगा? सब भक्त लोग, बड़ा लोग उनको बताएगा, बाकी संप्रदाय से सुनना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो सिद्धांत में हमेशा फर्क होता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत सुनने के लिए कृष्ण भावनामृत में जो बता रहे वही सिद्धांत को पकड़ के आगे जाने चाहिए, इसलिए यहाँ बता रहे, राइट। इसके बारे में सनातन गोस्वामी पद्म पुराण में जो लिखा है उसके बारे में बताता है, राइट। हरे कृष्णा, कैन यू राइज द स्क्रीन? अवैष्णव मुको गीर्णम उत्तम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथापयः। सर्पोच्छिष्टम, सर्प क्या कहता है, क्या कहता है, राइट। सर्प क्यों जो करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? विष। अवैष्णव, उनसे सुनेगा तो उनका मुख से सुनेगा तो ठीक नहीं रहेगा, राइट। आगे उसमें अनुवाद क्या बताता है अभी हिंदी में पढ़ने के लिए मैं थोड़ा शिफ्ट करेगा। हरे कृष्णा। सीमा करना माता जी पढ़ सकते हैं। सरिता कपूर माता जी, आप लोगों को बुला लिया 2 बार 3 बार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी, आफ्टर दैट आई विल रीड। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहला सीमा करना माता जी पढ़िए जी। प्रभु जी यहाँ से ना जो वैष्णव आचरण, हाँ बराबर, वहां से जो वैष्णव आचरण वाला ना हो उससे कथा नहीं सुननी चाहिए। वैष्णव तो निवृत्त तृष्ण होते हैं, उसका कोई भौतिक उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्णा भावनामृत का प्रचार करना होता है। तथाकथित विद्वान, दार्शनिक तथा राजनीतिज्ञ स्वार्थवश भगवत गीता के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसलिए यह श्लोक सावधान करता है कि कृष्ण कथा का वाचन वही करे जो निवृत्त तृष्ण हो। शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के आदर्श उपयुक्त वाचक हैं और मृत्यु का सामना करने के पूर्व अपना राज्य तथा परिवार को किसी उद्देश्य से छोड़ने वाले परीक्षित महाराज आदर्श श्रोता हैं। श्रीमद् भागवत को सुयोग्य वाचक भक्त जीवों को सही औषधि भवौषधि प्रदान करता है। इसीलिए कृष्णा भावनामृत आंदोलन ऐसा योग्य प्रचारकों को परिचित करने में प्रयत्नशील है, जो सारे जगत में श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता का वाचन कर सकें, जिससे विश्व भर के सामान्य जन इस आंदोलन का लाभ उठा सकें और भौतिक संसार के तीनों तापों से छूट सकें। हरे कृष्णा। एक मिनट बाद, थैंक यू।
यहाँ हम लोग जैसे ही पढ़ते थे भागवत महात्म्य श्लोक, उसमें क्या बताता है, और भागवत में एक श्लोक है तापत्रय उन्मूलनम, कौन सा श्लोक, क्विक क्विक क्विक, कौन सा श्लोक है, तापत्रय उन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः हाँ, शुश्रूषति। क्योंकि ऐसी कृष्ण भावनामृत, ऐसी शुद्ध भक्त जो भी कृष्ण भक्त है, उन्होंने बिना उद्देश्य ऐसे वैष्णव से हम लोग क्या सुनना चाहिए, भगवत गीता भागवत सुनना चाहिए। उन्होंने क्या करेगा, ये भागवत कथा सबको देने के लिए इच्छुक है, क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार ये प्रचार करने के लिए हमेशा इच्छुक रहता है। जो बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए उन्होंने एक कथा शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, ऐसी भक्त से शुरू और सुनना चाहिए। क्योंकि यहाँ बताता है ऐसी भक्त से सुनने से क्या होता है, हमारा जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर आ जाता है, क्योंकि फिर हमारा मनुष्य शरीर का असली उद्देश्य प्राप्त होता है। और यहाँ बताता है श्रोत्र भव औषध, क्योंकि यहाँ विशेष रूप से ये तात्पर्य में प्रभुपाद इतना विस्तार से क्यों बता रहे, देखिए ये कथा सुनने के लिए हम लोग बहुत कुछ सोच के सुनना है, संप्रदाय के बारे में चेक करना है, वो ठीक से वैष्णव है, ऐसे सब कुछ सुनकर उसके बाद, क्योंकि अपना लाभ के लिए कोई कोई बताने वाला है, वो कैसे होता है, एक अवैष्णव होता है, राइट। अभी देखिए एक पूरा बर्तन में दूध रखा है, राइट, तो एक सर्प आके उसको स्पर्श किया होगा तो क्या होता है, पूरा विष बन जाता है। मगर हमारा भागवतम तो कैसे हमको सुन सकता है, जैसे निगम कल्पतरो गलितम फलम शुकमुखात अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव गोस्वामी उन्होंने क्या किया, ये भागवत को चुन लिया, चुनने के बाद वो भागवत फल का और मीठा और अमृत बढ़ते रहते हैं। इसलिए यहाँ क्या करना चाहिए, ऐसे वैष्णवों से ये कथा सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद इसमें ज्यादा विषय लिखता है, ऐसी वैष्णव जो भी ये भागवत कथा शुरू करता है उनसे सुनने के लिए क्या होता है, बहुत लोगों को इच्छुक रहता है। ये बहुत औषध है। और इसके अलावा उन लोगों को 3 प्रकार का ताप, क्या क्या ताप है, तापत्रय उन्मूलनम, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। अच्छा, आध्यात्मिक बोलेगा तो अपने आप से हमको ताप आ जाता है, दुख आ जाता है, राइट, हमारा जो कार्य की वजह से भी हमको दुख आ जाता है। दूसरा ताप क्या है, आदि भौतिक। तीसरा क्या है, आदि दैविक, देवतास्व। ऐसे ही देखिए कुछ महीने के पहले हम लोग देखा था सीरिया और टर्की में क्या हुआ था, भूकंप, उसको क्या कहते हैं, आदि दैविक, राइट। ये जितना भी ताप है तीनों को ये भागवत क्या करता है, उन्मूलनम, मूल से उसको उठा के फेंक देता है। इसलिए प्रभुपाद क्या लिखता है, ऐसी व्यक्ति को तुरंत ये भौतिक जगत का पार करना बहुत आसानी हो जाता है। ये बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल नेता लोग क्या करते हैं, बहुत कुछ अपना लाभ के लिए और बहुत कुछ फिलोसफर ना सिद्धांत बात करने के लिए कोई कोई होता है ना, वो लोग भी क्या करते हैं, स्व इच्छा के लिए और खुद का लाभ उठाने के लिए बहुत कुछ करता है। वैसे इसे सुनना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। अभी हम लोग बीच में वो कुलशेखर आழ்वार का श्लोक देखेंगे, फिर वापस ये तात्पर्य में आएंगे, क्योंकि ये तात्पर्य तो बहुत लंबा है और बहुत कुछ पेजेस चलते रहते हैं, राइट। हरे कृष्णा। ये इसलिए ये श्लोक का महत्व ज्यादा हो गया। 10:1-4 वापस एक बार बताता हूँ। 10वें स्कंद में पहला अध्याय में श्लोक का संख्या 4 बाई हार्ट करना चाहिए, ठीक है। अभी इसका संबंध में हम लोग देखा है औषधम औषधम, राइट। ये औषधों के बारे में हमारा प्रिय श्री वैष्णव में कुलशेखर आழ்वार, उन्होंने 12 आழ்वार में एक विशेष है, इन्होंने एक राजा थे, कौन सा देश में, पांड्य देश, सॉरी शेरनाड़ बोलेगा तो आजकल केरला ज्यादा उसमें है, थोड़ा थोड़ा तमिलनाडु भी है, राइट। शेरनाड़ में उन्होंने विशेष महत्वपूर्ण राजा है, उनका वंश में आजकल हम लोग देख सकते हैं तिरुवांकूर, तिरुवनंतपुरम बोलते ना,
वो राजा भी यही कुलशेखर आழ்वार राजा परंपरा में आने वाला है। ऐसा अभी हम लोग देख सकते हैं, ये राजा को हम लोग क्या कहते हैं, राजा ऋषि बोलते हैं। इन्होंने अनेक वैष्णव संप्रदाय के बारे में बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि इन्होंने जो मुकुंदमाला लिखा है प्रभुपाद को बहुत अति प्रिय है। श्रील प्रभुपाद इसका विस्तार से उन्होंने बहुत कुछ उसका अनुवाद वगैरह लिखा है, कोई कोई तात्पर्य भी प्रभुपाद खुद लिखा है। उसके बाद जो बचा हुआ है उनका प्रभुपाद का शिष्य उनको पूर्ति किया है। ये मुकुंदमाला बुक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग रोज पढ़ सकते हैं। इसमें सिद्धांत एकदम टॉप क्लास है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में इतना विस्तार से समझाता है, राइट। अगर कोई आ सकते तो केरला साइड में यात्रा में आएगा तो उसमें देख सकते हैं इनका जन्मभूमि में वो केरला है आज, राइट। वो जगह का नाम भूल गया मैंने, तुरंत याद आता नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा। अभी श्लोका संख्या 32 मुकुंदमाला में, व्यामोह प्रसमौषधम मुनि मनो वृत्ति प्रवृत्ति औषधम दैत्येन्द्रार्थी कर औषधम त्रिभुवन संजीवक संजीवनैक औषधम भक्त्यान्त हित औषधम भव भय प्रध्वंसैक औषधम। देखिए, भव भय प्रध्वंस नैक औषधम, ये भाई हमको नहीं चाहिए। किसके बारे में? ये भवसागर के बारे में भयभीत नहीं चाहिए, क्योंकि परम औषधम क्या है? भगवान का दिव्य नाम है। आगे उन्होंने क्या बता रहे? श्रेय, सबसे उत्तम क्या है? श्रेय प्राप्ति कर औषधम, ये प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? पिब मनः श्री कृष्ण दिव्य औषधम। कैसे बता दिया? देखिए, श्रेय प्राप्ति कर औषधम पिब मनः श्री कृष्ण दिव्य औषधम। इसका अनुवाद आपको कर सकते हैं माता जी, औषध डाल दीजिए सर, अनुवाद औषध। हरे कृष्ण। 32। अच्छा, ये पढ़ने के लिए मैं अभी बुलाता हूँ करीदी माता जी, आप पढ़ सकते, पढ़िए। हरे कृष्णा। करीदी माता जी। हरे कृष्णा। शी इज नॉट देयर। अच्छा, जिनको चांस नहीं मिला उनको बुलाता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई कैन रीड। हाँ, पढ़िए। Sorry. हाँ। O mind, please drink the transcendental medicine of Krishna's glories. It is the perfect medicine for curing the disease for bewilderment, for inspiring sages to engage their minds in meditation, and for tormenting the mighty Daita demons. It alone is the medicine for restoring the three worlds to life and bestowing unlimited blessing on the Supreme Lord's devotees. Indeed, it is the only medicine that can destroy one's fear of material existence and lead one to the attainment of supreme good. हरे कृष्णा। थैंक यू। यहाँ कुलशेखर कैसे बताते हैं? ओ माइंड, ओ माइंड बजेगा तो उन्होंने मन को आदेश देता है, आज्ञा देता है। क्या कर रहा है? प्लीज ड्रिंक द ट्रांसेंडेंटल मेडिसिन ऑफ कृष्णा ग्लोरीज। भगवान श्री कृष्ण का प्रशंसा और लीला का बारे में सुनकर परम औषध को पी लो। इट इज द परफेक्ट मेडिसिन फॉर क्यूरिंग द डिसीज ऑफ बिविल्डरमेंट। हमको को हमेशा मोह होता है ना, भौतिक जगत में बहुत कुछ देखे हम लोग, क्या हो जाता है? मोह बन जाता है। ये मोह तो हमेशा एक व्याधि है, उसका औषध क्या है? ये भगवान का नाम है। और क्या क्या बताया? फॉर इंस्पायरिंग सेजेस टू एंगेज इन देयर माइंड इन द मेडिटेशन। अगर मुनिवर को ये कैसे बनता है औषध? उनका मन को भगवत विषय में लगाने के लिए ये औषध बन जाता है। और आगे क्या बताता है? फॉर टॉर्मेंटिंग द माइटी दैत्य डेमन्स, और असुरों को वध करने के लिए और उनको भयभीत पहुंचाने के लिए ये बहुत है। और आगे क्या बताता है? इट इज इट अलोन इज द मेडिसिन फॉर रेस्टोरिंग द थ्री वर्ल्ड्स टू लाइफ। तीनों लोगों को जीवित लाने के लिए क्या चाहिए? यही परम औषध है। देखिए, भौतिक जगत में भी हम लोगों को क्या कर सकते हैं? भगवत विषय को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का नाम बोलते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, फिर क्या हो जाता है? ये भौतिक जगत तो हमको भयभीत देने वाला नहीं है।
जब तक हम लोग भौतिक विषय में आसक्ति में डूब जाता है, इंद्रिय तृप्ति विषय में डूब जाता है, तब तक हम लोगों को ये भयभीत होता है। जब भी हम लोग ये भौतिक जगत में आ गया तो शुरुआत से क्या करना चाहिए, भगवत विषय में जोड़ना चाहिए, राइट। इसलिए परीक्षित महाराज अपना माँ का गर्भ से ही उन्होंने भगवत संबंध प्राप्त हो गया, इसलिए उनको भयभीत बिल्कुल नहीं था भौतिक जगत के बारे में, राइट। इसलिए क्या कहते हैं, 3 वर्ड्स को लाइफ, उनको जीवन देने वाला क्या है, भगवत नाम। और फॉर बेस्टोइंग अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड्स डिवोटी, वो कैसे प्राप्त हो सकते हैं, भक्त का द्वारा ये प्राप्त होता है। भक्त को भगवान ने बहुत कृपा कैसे करता है, ये औषध के द्वारा। और इंडीड इज द ओनली मेडिसिन, क्या लिखता है, इट इज द ओनली मेडिसिन, एक ही औषध है दैट कैन डिस्ट्रॉय वंस फियर। और कोई व्यक्ति को, मनुष्य को भयभीत होगा तो ये भौतिक सागर के बारे में उनको यही सुनना चाहिए। इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं, सुप्रीम गुड, श्रेय प्राप्ति ही। क्योंकि बाकी जितना भी हम लोग कोशिश करेगा तो ज्योतिष के पास जाएगा, हो जाएगा डॉक्टर, मगर ये तो क्या होता है, परम सिद्धि एक प्राप्त नहीं होएगा। मगर ये भगवान का नाम लिया होगा तो हमको क्या हो सकता है, सबसे उत्तम और श्रेय प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। चंद्रशेखर आडवार का एक श्लोक है, हरे कृष्णा। अच्छा, ये तात्पर्य तो और बहुत कुछ पेजेस है, हम अभी सोच रहे एक पैराग्राफ देखेंगे, उसके बाद कल वापस शुरू करेंगे। ठीक है, अभी एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए मैं बुलाता हूँ। कैन यू मेक इट हिंदी में? हिंदी हिंदी में अभी सरिता कपूर आप पढ़ सकते तो पढ़िए माँ हिंदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, पढ़िए। भगवत गीता के आदेश तथा श्रीमद् भागवत के वर्णन इतने मनोहरी हैं कि भौतिक संसार के तीनों तापों से तप्त प्राय प्रत्येक व्यक्ति इन ग्रंथों में से भगवान की महिमा को सुनना चाहेगा और मुक्ति के मार्ग में लाभ उठाना चाहेगा। किंतु 2 प्रकार के लोग कभी श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के संदेश को सुनने में रुचि नहीं लेंगे। एक वे जो आत्महत्या करने पर तुले हैं और दूसरे जो अपने स्वार्थ के लिए गौओं तथा अन्य पशुओं का वध करने पर तुले हुए हैं। यद्यपि ऐसे लोग भागवत सप्ताह के समय श्रीमद् भागवत सुनने का दिखावा करते हैं, किंतु यह कमीजनों की दूसरी सृष्टि है जिन्हें ऐसे कृत्य से कोई लाभ नहीं मिल सकता। इस संबंध में पशुघ्नात द्वारा शब्द महत्वपूर्ण है। पशुघ्न का अर्थ है कसाई। उत्तर लोकों में जाने के लिए कर्मकांडी व्यक्तियों को यज्ञ करते समय पशुओं का वध करना होता है। इसलिए भगवान बुद्ध देव ने वेदों के प्रमाण को तिरस्कार किया, क्योंकि वे पशु बलि को रोकना चाहते थे, जिनकी वैदिक अनुष्ठानों में संस्तुति की गई है। निंदस्य यज्ञ विधेरः श्रुति जातम सदै हृदय दर्शित पशु घातम केशव धृत बुद्धि शरीर जय जगदीश हरे। माता जी एक मिनट। हरे कृष्णा मैं एक बार पढ़ता हूँ, ठीक है। निंद यज्ञ विधेरः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। अच्छा, ये श्लोक जयदेव गोस्वामी ने
भगवान के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ये आचार्य तो ओडिशा में उन्होंने अवतरित किया है। भगवान का विषय के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। हम लोग गीत गोविंदम करके एक सुनता ना, वो किसने बनाया? यही जयदेव गोस्वामी ने बनाया। उसमें उन्होंने ये भी अनेक श्लोक, उसको अष्टपदी बोलते हैं, भगवान को स्तुति करने वाला है, बहुत सुंदर वर्णन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अष्टपदी। ये जयदेव गोस्वामी आगे ये भी लिखा है दशावतार श्लोक। ठीक है, ये दशावतार श्लोक में एक इंपॉर्टेंट श्लोक है बुद्ध शरीर के बारे में। बुद्ध भी एक अवतार है, मगर कृष्ण तो अवतारी है, वो अवतार नहीं है, ये याद रख लो। इसलिए जयदेव गोस्वामी हमको स्पष्ट बताता है भगवान श्री कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जितना भी अवतार है ये भगवान से उत्तम है, ये बोलना नहीं चाहिए, राइट। इसलिए यहाँ बताता है निंदसी यज्ञ विदेरः श्रुति जातम तदय हृदय दर्शित पशुघातम केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ये दशावतार अनेक रागा में गाता है, यम सुब्बलक्ष्मी और अलग राग में, और इसका में हम लोग यही गाता है, अलग अलग रूप में है, बहुत सुंदर है। ये दशावतार श्लोक आप लोग हमेशा कोशिश करिए पढ़ के आनंद कर सकते हैं। भगवान हर एक अवतार लिया है, हर एक अवतार के बारे में उन्होंने बताता है, राइट। ये बोलना मत। ये कौन है, किसने लिखा है? जयदेव गोस्वामी ने लिखा है। हरे कृष्णा। माता जी अभी रुकिए, मैं इसको मैं समझाने के बाद आगे देखिए, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी माता जी तो हिंदी में पढ़ लिया, क्योंकि आज हमारा भक्त संघ में बहुत चेन्नई भक्त लोग हैं, उन लोगों के लिए मैं अभी इंग्लिश में शुरू करेगा। पूरा हिंदी में बोलेगा तो उन लोगों को समझना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। हरे कृष्ण। So we can understand the instructions of Bhagavad Gita and the description of Bhagavatam are so pleasing that almost anyone suffering from threefold miseries will desire to hear the glories from these books and thus benefit on the path of liberation. मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है, वो भागवतम भगवद गीता। अभी देखिए, कोई भी व्यक्ति है हमेशा चिंतित है, राइट, किसको ऊपर? हमारा भौतिक जगत का बारे में, राइट। हमारा लाभ कैसे होगा, हमारा व्यापार कैसे चलेगा, हमारा बेटी को ये होना चाहिए, पोता को ये ठीक होना चाहिए, अनेक विषय हम लोग डूब जाता है, राइट। मगर हर विषय में हम लोग जितना चिंतन रहता है, राइट, चिंतन रहकर क्या फायदा है? कुछ होने वाला कुछ। फिर मन को उन्होंने अभ्यास नहीं दिया। क्या अभ्यास नहीं दिया? भगवत विषय को। ऐसे व्यक्ति अगर कोई वैष्णव का कृपा से एक सत्संग में आ गया तो थोड़ा समय बैठेगा तो क्या हो जाता है? उनको पूरी तरफ से जितना भी ताप है, जितना भी दुख है, एकदम चले जाता है। क्या कारण है? अपना मन को असली संबंध मिल गया है, राइट। हम लोग यहाँ आने के बाद, भौतिक जगत आने के बाद भगवान को बोलकर हम यहाँ फंस गया। क्या कारण है? 3 प्रकार का गुण है, सत्व रजस तमस। हमको कैसे करता है? उसको घुमाते रहते। So it keeps us rotating like it. So we are suffering again and again and again. So to get out of this, the best thing is to always be in touch with the Krishna Katha. So the moment they come and listen to the Krishna Katha, all their sufferings become very light. Why? Because the mind is filled with the Krishna Katha. So all the sufferings goes away. So one should keep on engaging their mind in the Krishna Leelas, Krishna Kathas. That's why we saw that no Kulasekara Alvas, he's instructing the mind. So here also, Prabhupada is explaining, by listening to repeated this Krishna's Leelas and glories, one is automatically relieved from the miseries of the material world. So such a person cannot think of the suicide at all. Can you imagine? There are so many suicide cases happening all over the world, right? Let it be a billionaire, let it be a papa.
right? Let him be a student or a youth, anything. Why? Because their mind is filled with all the miserable situations. They are not able to think of Krishna. They do not get the opportunity of getting a contact of a Vaishnava. The moment they get the contact of a Vaishnava, automatically their life will be transformed like anything. Because they'll be engaging their mind in the Krishna Katha, automatically all their bad thoughts, all their miserable situations are transformed. So that's why here it says, determined to kill cows. Pashugna. So here there is another example is given. Pashu means can be called Atma also, and it can be called as a cow also. So there are two definitions here. That's why it is written here. Those who are determined to commit suicide and those who are determined to kill cows and other animals for satisfaction of their own tongue. So a butcher will not bother about killing the goat or a cow or a dog, whatever it is. So that means such a person will have no taste for this. Similarly, those who are trying to suicide, they also will not. But if they any chance, they get the chance of a contact of a Vaishnava, automatically this is happening. So here also it is explained very clearly. Pashugnat means butcher, person fond of performing ritualistic ceremonies for elevation of higher planetary system. This is also condemned, right? So when people are conducting so many yajnas and they kill so many animals, this is also sense gratification because they want to gain so many benefits and they want to go to upper planetary system and enjoy all the material enjoyment and they want to have all sense gratification. So they are ready to kill all type of animals. But this is stopped by whom? Buddha. Buddha came and rejected this theory of it. No more bali, no more sacrifice. What sacrifice? Pashu bali. But nowadays people are doing narabali also, even in this time. So this is completely condemned. So yajna is meant for satisfying Vishnu, not for anybody else. But nowadays people worship Devata and they do all type of sacrifice and they kill all these animals for their sense gratification, which is also condemned very heavily. They are also considered as a butcher. So these are all again, Bhagavad Gita says, Avidhi Purvakam. They are doing worship in a wrong way, not as per the Vidhi. So these are all condemned way of worship. So one should always worship Krishna only, no one else. So let us talk about the Buddha, what he prescribes, right? Buddha appeared and he rejected this. His mission was to stop animal sacrifice. That's why he recommended this. So what the Vedic rituals this is telling, this is Jayadev Goswami is explaining it. It's written here, no, within bracket Gita Govindam. It's part of Gita Govindam. So this Dashavatara Shloka is also part of Gita Govindam. Hare Krishna. Then we have to continue the reading of this paragraph. There is some small portion, right? With that, we'll complete. Oh, it's going to another sloka also. Okay. I think we'll stop here. Hare Krishna, keep a note of it. Subhash Prabhu, are you there? Hare Krishna. I think he's not there, no problem. Simran? Yes, Prabhu, noted, Prabhu. Okay. So you will be available tomorrow also? Yes, Prabhu, yes. Tomorrow the times will be different, try to understand. All the devotees, I am repeatedly telling, tomorrow is my flight to Dubai at 7 o'clock in the evening. So we will be leaving the house around 4:30. So we have to catch the flight at 7 o'clock. So tomorrow, I request what will be the best time for 1 hour reading. I'm not going to extend much because the continuity of the Bhagavad Saptak should continue. That's the reason. Tomorrow we'll have some 1 hour session. So ideally, is it okay for all of you between 2 to 3 or 1 to 2? For me, if it is 1 to 2, it's ideal because after that I have to get ready. I have to leave at 4:30. Prabhuji, 1 to 2 India time or Dubai time? Yeah, India time only.
Okay. वो Yes. I am वर्किंग in डे है India, ना. I will be talking Indian time only. Prabhuji, 2 to 3. Now 2 to 3 minutes, then I have to rush to the airport very quickly. Okay, 1 to 2 then, no problem, Prabhu. Okay. So 1 to 2 minutes, it is for you 12:30 to 1:30, right? Oh, sorry. No, 11:30 11:30. to 12:30. 12:30. Is it okay for you, all of you, to join only for tomorrow? Then afterwards, we'll have the normal times. Okay? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. पूर्णानंद प्रभु बोलिए. हाँ ठीक है भैया, मैं भी आज इंडिया के लिए निकल रहा हूँ. मैं अब 1 बजे आपको ज्वाइन करूंगा कल इंडिया टाइम. हरे कृष्णा. मैं सुबह 10 बजे बॉम्बे पहुंच रहा हूँ. मैं आपको फोन भी करूंगा उधर से. ठीक है. हरे कृष्णा. आई एम कमिंग बैक ऑन 6, तो आपको मिलेंगे इधर. 6 को मैं वापस आ रहा हूँ. ठीक है ब्रो. हरे कृष्णा. थैंक यू. मिनी माता जी Prabhuji, कह रही है. I'm also traveling tomorrow to Kerala. I'm planning to go to Guruvayur. Okay. तो अभी इंडिया से ज्वाइन करना. हरे कृष्णा. But how long you're here in Dubai, Prabhuji? We'll be there between 23rd March to 21st April. Oh, good. Then after coming back, I can see you. Yes, Okay. Great. हरे कृष्णा. सभी भक्तों को निवेदन है, वापस एक बार बताता हूँ. कल का भागवत कथा इंडियन टाइम 1 to 2, मतलब आपका दुबई का टाइम है 11:30 से लेकर 12:30 तक. ठीक है, क्योंकि मेरे को 4:30 को घर निकलना है एयरपोर्ट जाने के लिए. हरे कृष्णा. याद रखिए, मैं मैसेज भी डाल रहा हूँ ग्रुप में, जिनको आ सकते हैं आइए, क्योंकि बाकी भक्त लोगों को ऑफिस होगा तो आना मुश्किल होगा. जिनको आ सकते हैं आइए. हरे कृष्णा. फिर परसों से हमारा टाइम वही है, हमेशा यूएई टाइमिंग 4:30 to 8:30. थोड़ा आगे पीछे ये होगा, 4:45 कभी होगा. फिर 8:15 भी थोड़ा जल्दी हम लोग पूर्ति करेंगे. हरे कृष्णा. बीच में हर 1 घंटे के बीच में हम लोगों को कीर्तन होगा, आपको उसमें भी आनंद ले सकते. हरे कृष्णा. तो अभी आरती होगा ग्रंथराज को. ठीक है, अभी कीर्तन करने के लिए मैं बुलाता हूँ कमलामुखी माता जी. नमस्ते नरसिम्हा गाइए. हरे कृष्ण प्रभु. ना एक मिनट. ओके प्रभु. ओके प्रभु. गीता. Where is Karpur? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. अच्छा, आज का क्लास में मणि माता जी है क्या? आने वाली है, आया नहीं अभी तक ऐसा नहीं आया. ठीक है. हरे कृष्ण. प्रभु जी, आई वांटेड टू आस्क, आज की क्लास का कोई मैसेज नहीं था ना, आज की डेट का प्रभु जी? दैट आज माता जी उसमें जो पोस्टर बनाया मेरा बेटा, उसमें थोड़ा गड़बड़ है, 23 से लिख दिया उन्होंने. मैंने लिखा आपका फॉरवर्ड किया हुआ पोस्टर मैंने चेक किया 23rd है, एंड देन सडनली आई सॉ योर मैसेज लेट कि प्लीज जॉइन नाउ, एंड आई एम थिंकिंग एंड यू स्टार्टेड आल्सो द फर्स्ट, मतलब पूरा वो. एंड प्रभु जी, आई वांट टू आस्क, हमने लास्ट ईयर 9th कैंटो किया था क्या प्रभु जी? मुझे लास्ट ईयर. अच्छा, लास्ट ईयर ऑनलाइन था पूरा. यस. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभु. कमलामुखी माता जी स्टार्ट करिए. हरे कृष्ण प्रभु. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलतन्कानखालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा बाहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गां
दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। सर्व विघ्न विनाशाय श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। Hare Krishna. I am sitting at the lotus feet of Srinaji. That's the reason I showed you. Hare Krishna. Once again, Prabhuji, can you please show darshan? I missed it. Okay. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कल भी याद रखिए, कल का भागवत कथा दोपहर को चेन्नई टाइमिंग 1 से 2 तक, दुबई का टाइमिंग 11:30 से 12:30 तक। हरे कृष्णा। His Grace परमेश्वर गौर प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you Prabhu. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. We thank the Mahamani Krishna Prabhu and his family. They have been guiding us all this. And we have to thank especially our parents who have given this wonderful body to do all these things. Hare Krishna. Thank you. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare Hare Krishna. Krishna Prabhu. Hare Krishna. कृष्णा प्रभु जी Hare धन्यवाद। Krishna Hare Prabhu. Krishna. हरे कृष्णा प्रभु। Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बालकृष्णा किधर है? बहुत दिन हो गया आपको मिलकर। आइए प्रभु सब जी, ठीक है? वेलकम मिलेंगे प्रभु। परसों मिलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नया भक्त लोग बहुत जुड़े हुए। हेमा लालवानी बहुत नया नाम दिख रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल का बोलिए टाइमिंग माँ। चेंज है क्या प्रभु जी? कल का टाइमिंग चेंज है क्या? माता जी मेरा को कल फ्लाइट है 7 बजे यहाँ से दुबई के लिए। अच्छा, ओके। इसलिए 7 बजे फ्लाइट है, मैं घर से निकलना पड़ेगा 4:30 को। ओके प्रभु। कल सिर्फ कल के लिए इंडियन टाइम 1 से 2 बजे तक 1 ही घंटा है। परसों ओके से प्रभु। वहां का टाइमिंग 4:30 से लेकर 8:30 तक। ठीक है? ओके प्रभु जी। ओके प्रभु जी। बेटा कैसा है अभी? प्रभु जी बेटा ठीक है। ओके वेरी गुड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मोहित चोपड़ा वो भी नया भक्त है क्या? कहाँ का है मोहित चोपड़ा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम दुबई से हैं प्रभु। अच्छा दुबई में कहाँ रहते हैं प्रभु? प्रभु बड़ दुबई में प्रभु। ओहो मिलेंगे फिर। हरे कृष्णा। हम जल्दी मिलेंगे, हम वेट कर रहे हैं। करदी माता जी भी उधर ही का है। ठीक है। और भी कोई जी। नया भक्त नाम देखा था। हेमा लालवानी माता जी दुबई का है, बड़ दुबई का है। हेमा माता जी, हेमा लालवानी। हरे कृष्णा। अच्छा पूर्णानंद तो बर्दबे का है, कहाँ का है आजकल? पूर्णानंद जी प्रभु। आजकल बर्दबे का है, कहाँ का है आप? बारदुबई है ना? अच्छा यार ये अभी आपने सब घर घर में रखा है, मेरे को फिर आना पड़ेगा घर घर में। ऐसा नहीं करो यार, एक ही जगह में रखते थे ना 607 में भागवतम, अच्छा होता था। नहीं वहां तो गड़बड़ हो जाएगा। एक 607 में रोज इतना भक्त लोग आएगा तो भीड़ ज्यादा हो जाएगा।
अरे हो चल 50 60 80 आदमी आते हो जाता था यार। है नहीं प्रभु, नहीं क्या होता है अभी देखिए 80 भी कभी कभी होता है रश। हाँ हाँ वो तो ठीक है। नहीं रोज 30 दिन ऐसे बोलेगा तो मुश्किल है प्रभु। कभी सब अभी एक दिन नहीं चले। कभी शारजा में भी होएगा, कभी अजमान में भी होएगा, फिर बाग शीश महीने के जैसे आपको भागना पड़ेगा इधर उधर। हाँ बराबर, भक्त लोग हमको लेके जाएगा ना। हाँ वो तो ठीक है, वो आपको टेंशन नहीं। और विजया जी भी इंडिया में है ना, वो भी कल परसों आ रहा है शायद। हाँ बराबर बराबर, अब तो सब अपडेट रखा है, फिर क्या है। अरे सर मैं फिर दादा किस काम का इधर। एक डंडे वाला ऊपर, एक डंडे वाला नीचे। सही है ना? बात बिल्कुल सही है। अच्छा माता जी सरिता कपूर भी दुबई का है ना? सरिता कपूर माता जी। माता जी किधर? माता जी मैं देखा उधर से किचन से निकली। माता जी किधर है उधर में? माता जी थोड़ा बिजी रहती है, प्रिपरेशन पैकिंग वगैरह। सरिता माता जी अब दुबई का है ना? माता जी हरे कृष्णा। Yes, Prabhuji. I have a clinic at Pardubai Bank Street. हरे कृष्णा, मिलेंगे। गीता पूर्णानंद बुला रहे हैं आपको। वो पैकिंग में तैयार है। माता जी हरे कृष्णा। तैयार है। आ गई। वो पैकिंग करते बात करती है। चलो ठीक है, अब मैं कल बॉम्बे पहुंचता हूँ। मैं बॉम्बे पहुंचता हूँ, आपको फोन करता हूँ बॉम्बे से। पैकिंग तैयार करना। हाँ करो पैकिंग करो। मैं बॉम्बे से फोन करता हूँ आपको घर पे चेन्नई में। ठीक है, करिए ब्रो, करिए। 10 बजे 11 बजे पहुंचूंगा, आपको क्लास से बात भी करूंगा, फोन भी करूंगा आपको। अच्छा प्रभु, आपका पत्नी का तबीयत ठीक है ना? नहीं, उसका तबीयत थोड़ा नीचे नरम गरम है। हम लोग दोनों जा रहे हैं, थोड़ा काम है। और फिर हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, 4-5 दिन के लिए काम है उधर। ओके। बैग हम लोग आएंगे साथ में, फिर देखते क्या होता है। I'll talk to you from there. श्योर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुरेश्वर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु फॉर यू हिंदी इज ओके ना सुरेश्वर? हिंदी எனக்கு அந்த அளவுக்கு புரியாது பிரபுஜி, இங்கிலீஷ் தான். ஹிந்தி ஓகே தானே? எனக்கு ரொம்ப மோசமான ஹிந்தில தெரியும் உங்களுக்கு. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. But the class is Hindi and English only. What to do? Okay, brother, no problem. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. பக்தர்கள் வந்து பகவான் காந்தி இவ்வளவுதான் பேசுவாங்க, அதை எங்கேயாவது காது கேட்டா. அவ்வளவுதான். That's it. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Thank you. I am closing the program. Hare Krishna.